right? And majority students here are someone who are still preparing for GRE, and a few of you are also preparing for SAT. So it is important for you as well to attend this session, because having a research paper in your profile does a lot of wonders to your profile, right? Because right now, or in these days, it's not just sufficient to have a good CGPA and a good GRE score or good SAT score, right? Why? Because the degree you are doing in US, they rely more on research. आपकी जो degree रहेगी, MS हो चाहे BS हो, bachelor's हो, you'll be conducting a lot of research, right? So in that sense, they want to see whether you are capable enough to do those kind of things or not. Having a good research paper in a profile corroborates their thinking, their suspicions of whatever key, yes, this guy can do a research, this guy can help me as a TA or an RA. So I'll give you a few examples from past students who had research papers and what they did to, how they helped it, how this thing helped them in during a bachelor's or master's, right? So one of our students, Yuvraj, if you might remember, he went in 2015. He's graduating this year, right? He went to Drexel on full scholarship, and he had a research paper. He, Palash, these two people had research papers. So उनका फर्स्ट ईयर के बाद उनका कोई स्टार स्कॉलरशिप करके स्टार स्कॉलरशिप मिलता है उन लोगों को रिसर्च का. सो इन दैट व्हाट दे गेट इज कि फर्स्ट ईयर के बाद उनको किसी एक प्रोफेसर के साथ काम करने का मौका मिलता है ऑन रिसर्च प्रोजेक्ट. एंड देयर समर, जैसे समर में उन लोग को अकोमोडेशन वगैरह नहीं मिलता, बट एज अ स्टार स्कॉलर दे गेट 3 months ऑफ accommodation in the dorms, plus they get $4,000 scholarship, and it is very competitive. Drexel में हर साल 4,000 लोग अप्लाई करते हैं स्टार स्कॉलरशिप के लिए. खाली 100 students only get that, and these students were able to get that scholarship. Primarily one of the reasons was they already had a research paper. I'm not saying कि बहुत उम्दा क्वालिटी का रिसर्च पेपर था, कुछ पाथ ब्रेकिंग रिजल्ट थी, ऐसा कुछ भी नहीं था. सिंपल रिसर्च थी. तो वो मिथ भी हम लोग ब्रेक करेंगे आज की, कि यार हम तो 12th में ही हैं, हम तो यार मेडिकैप्स में ही हैं. पार्डन इफ आई एम नेमिंग एनी कॉलेज हियर, या हम तो लोकल आरजीबी कॉलेज में, हम कैसे रिसर्च करें? इट हैज नथिंग टू डू विद दैट. कई बार होता है कि नहीं, हमारे प्रोफेसर हमको हेल्प नहीं करते. सो ये भी है कि जरूरी नहीं है कि आपके प्रोफेसर का नाम उस पेपर पे आए या वो हेल्प करे. देयर इज अ लॉट ऑफ हेल्प अवेलेबल इन टर्म्स ऑफ मेंटर्स ऑनलाइन, और यू कैन स्टडी अ लॉट ऑफ रिसर्च पेपर्स, एंड वहां से आप बिल्डअप कर सकते हैं. ठीक है, तो ये 2-3 मिथ्स हैं जो मैं ब्रेक करना चाहूंगा यहाँ पे. Another example is last year, जैसे and now this is just a conjecture, basically we had 2 students more or less similar profile. मैं ये नहीं बोल रहा कि खाली डिफरेंस मेरे को जितना समझ में आता है, सीजीपीए भी दोनों का कम था, जीआरई भी एवरेज था. One of them got into UIUC, another one did not. I don't know, the only difference which I found was कि एक के पास रिसर्च पेपर था, दूसरे के पास नहीं था. तो फॉर मी, मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हैविंग अ रिसर्च पेपर इन हर रिज्यूमे हेल्प्ड हर समहाउ, राइट? Another example which I want to say is 2016 में we had a student called Jitendra Jain. He was from GSITS, again civil engineering student. He had a decent GRE, decent CGPA. He went to Tamu College Station. Again, this is a very reputed school in civil engineering. And not only he just got an admit, he got an admit with a fully funded scholarship. पूरा funded program था उसका. उसका tuition fee full waiver हो गया. He got a 15,000 scholarship per year as well. Again, he had a research paper, and the interesting thing about his research paper is that was the first time probably I helped someone. I worked closely with him to get a research paper published. Now this guy, what he did was, he was as clueless as someone else would be कि यार कैसे करें. He went to one of his professors. I don't remember her name, but उन्होंने sorry to say, but even GSITS के होने के बाद उन्होंने बोला नहीं, तुम अंडर ग्रेड हो, थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो, तुम कैसे रिसर्च करोगे, भगा दिया बेसिकली. तो वी टुक अप दैट टास्क. व्हाट वी डिड वाज, मैंने कहा आपको कुछ नहीं करना, आपको नया कुछ, यू डोंट हैव टू रीइन्वेंट द व्हील. ऑल यू हैव टू डू इज कि बहुत सारी रिसर्च आपकी फील्ड में, आप पहले देखो आपकी फील्ड में क्या आपकी इंटरेस्टिंग फील्ड है, आपके लिए रेलेवेंट फील्ड क्या है. आप उसमें रिसर्च देखो, यूएस की बड़ी यूनिवर्सिटीज में कहाँ पे क्या क्या हो रखी है, एंड आई एम श्योर यू विल फाइंड समथिंग which is relevant to say something here, and you can replicate it. कई बार ऐसा होता है ना, कोई स्टडी हमने की बर्कले में, तो हमने कैलिफोर्निया की किसी काउंटी के लिए की, तो मैंने कहा वो डेटा अपन उस टाइप की रिसर्च हम इंदौर के लिए भी कर सकते हैं. तो दैट गाय डिड सेम थिंग.
and he produced the data for Indore city. जो उसका traffic data था, that poor chap, what he did was, उसने actually अपने GSITs के सामने जो चौराहा है वहाँ पे बेचारा 2 घंटे खड़ा रहा, उसने वो traffic actually manually, because we did not have that kind of data available to the Indore Municipal Corporation. 2 घंटे चौराहे पे खड़े होके उसने वो ट्रैफिक गिना कि कितनी बाइक्स जा रहे हैं, कितना ट्रैफिक आ रहा है, वैसा उसने प्राइमरी डेटा एक्चुअली कलेक्ट किया फॉर हिज रिसर्च. And it was a good paper which he got published, and the result was he was able to get a good admit as well as good funding. So मेरे को लगता है कि रिसर्च पेपर कहीं ना कहीं आपके दो चीजें हेल्प करते हैं. एक तो आपकी प्रोफाइल इनहांस करते हैं, दूसरा वो कहीं ना कहीं एक आभास देते हैं और इम्प्रेशन देते हैं ग्रेजुएट एडमिशन कमिटी को कि दिस गाय इज सॉलिड, दिस गाय इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. इट हेल्प्स यू आउटशाइन अदर कैंडिडेट्स, कि उनको समझ में आता है कि दिस गाय इज इंटरेस्टेड. जरूरी नहीं कि वो IEEE में हो या एल्जेवियर में हो या साइंस डायरेक्ट में हो, किसी बड़े पेपर में जरूरी नहीं है. हालांकि हो तो अच्छा है, बट अगर किसी कॉन्फ्रेंस में भी है या किसी लोकल या लेस रेप्यूटेड पेपर में भी है, इट एटलीस्ट गिव्स एन इम्प्रेशन कि दिस गाय इज सीरियस अबाउट वर्किंग, दिस गाय इज सीरियस अबाउट synthesizing his thoughts into a coherently in a coherent way, right? So मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं हमको स्टार्ट करना चाहिए. ठीक है. So what we are going to, the agenda for today's session would be how on the following topics which I'm going to cover. So research paper क्या है basically, and why do you need to write a research paper? तो वो मेरे को शायद बोलने की जरूरत नहीं है. हमारा प्राइमरी एम वही है कि to get a good admit. So in that sense हमको research paper लिखना पड़ेगा. And some steps to proceed, कि हमको रिसर्च पेपर लिखना है तो क्या स्टेप्स हमको फॉलो करने पड़ेंगे. डूज फॉर द रिसर्च पेपर, क्या क्या चीजें करनी है. डोंट्स, which means what we don't have to do for publishing a research paper. Then we'll touch upon types of research paper, a few important research journals, and I'm planning to cover this in the next 15-20 minutes, and then I'll give over share the screen or give over the screen to Mr. Arun Shukla, who will be guiding you for in further detail for this whole process. Okay? Are there any questions so far? Just put it on the chat and I'll get back to you. So for whatever, okay sir, could you please, I'm recording it Arya, and then I'll put it on the this thing. इसको मैं आपके YouTube पे डाल दूंगा, पूरा मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ. So don't worry about that. Just focus on difference between review paper, research paper. We'll do that. How many research paper one should publish? Review paper और research paper दोनों का difference मैं आपको बता दूंगा. और आगे research paper कितने, देखो quantity does not matter, quality matters. तो आपको लग रहा है कि मैं अच्छी quality का research paper एक ही डालूं तो अच्छा है, rather than कि 3 mediocre में डाल दूं. अब इसमें भी मैं आपको क्या बता सकता हूँ, जो हमारे यहाँ स्टूडेंट्स करते हैं कि दे कोलैबोरेट एंड विन. कोलैबोरेट करते हैं आपस में, और फिर जैसे होता है कि आप 3 स्टूडेंट्स हो स्किल मास्टर हो गए, राइट. हर एक जना एक पर्टिकुलर पेपर पे काम कर रहा है. आप तीनों ABC हो, तो A ने एक पेपर पे काम किया, उसने BC का नाम भी डाल दिया, B और C का भी अपने पेपर में डाल दिया, और B ने एक दूसरे पेपर पे काम किया, उसने A और C का भी नाम डाल दिया. सिमिलरली C ने एक तीसरे पेपर पे काम किया, उसने A और B का भी नाम डाल दिया. So, ऐसा नहीं होगा कि 3 ऑथर हैं अगर पेपर में, तो वो जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. बट देन आप लोग मिलके अगर काम करेंगे तो आपके पास 3 पेपर्स रहेंगे. तो मेरे ख्याल से ऐसे डिवाइड एंड कॉन्कर करके भी कर सकते हैं कि आप तीनों अलग अलग लिखिए फिर कोलैबोरेट कर जाइए, राइट. तो दैट इज वन थिंग. तो हाउ मेनी रिसर्च पेपर वाला जो प्रॉब्लम है वो भी अपन रिजॉल्व कर सकते हैं बाय कोलैबोरेटिंग विद ईच अदर. ठीक है. डज पब्लिकेशंस हु पब्लिश द पेपर मैटर्स? यस. IEEE है, एल्जेवियर है, साइंस डायरेक्ट है, जितने बड़े, नेचर सबसे बड़ा है. नेचर दुनिया का सबसे बड़ा हार्ड टू, ऐसा है कि सबसे ज्यादा कठिन पब्लिकेशन है. तो जितना टफ रहेगा, ऑब्वियसली जैसे कॉलेजेस हैं, IIT वर्सेस मेडिकैप्स या जो भी है वो भी डिफरेंस है, वैसे जर्नल्स में भी डिफरेंस है. बट मैं बोल रहा हूँ अपने को ये सोचना है कि rather than having nothing and rather than having something, उसमें क्या बेटर है. तो अगर हमको IEEE नहीं मिल रहा ठीक है, बट अगर हमको IJSERT मिल रहा है या कोई और मिड लेवल का कोई रिसर्च पब्लिकेशन मिल रहा है, तो इट्स बेटर देन हैविंग नथिंग. Twinkle, you said that I have written research papers as a part of college curriculum, but they are not published. तो अगर पब्लिश करोगे तो सही है ना. It could either be a part of conference or it could be a part of a publication. Obviously, something which is not published is a private research. अभी आपने करी है पर कहीं है नहीं. Publication में आ गई मतलब it has been peer reviewed or it has been reviewed by some professors or a committee. So that's certain, that has been vetted and that has been accepted, right?
So it's certainly better or beneficial than having just sitting on your computer या आपकी Google Drive पे saved है research, उससे better है कि वो publish हो चुकी है. ठीक है? So can I move further? Can I go further? चलिए, thanks. तो हाउ टू नो विच कॉन्फ्रेंस उसकी बात करेंगे श्रेया. एक इम्पैक्ट फॉर कुछ रैंकिंग्स वगैरह होती हैं, साइटेशंस होते हैं, कुछ इम्पैक्ट फैक्टर्स होते हैं. दीज आर सर्टेन पैरामीटर्स ऑन विच थिंग्स डिपेंड, राइट. दूसरा अभी रिसेंटली क्या हुआ, लास्ट ईयर यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्चुअली बैंड 4000 रिसर्च पब्लिकेशंस, 4000 जर्नल्स को बैन कर दिया फॉर देयर माल प्रैक्टिसेस. कुछ शेडी प्रैक्टिसेस कर रहे थे कि बैक डेट में भी वो पब्लिश कर रहे थे. पेड जर्नल्स थे, दे वर चार्जिंग 1200 to 2400 or maybe 5000 rupees to publish your paper, right? So कई सारी ऐसी प्रैक्टिसेस थी जिनके कारण कई सारे जर्नल्स को बैन कर दिया गया है. तो यू नीड टू मेक श्योर दैट यू आर नॉट पब्लिशिंग टू दोज लिस्ट. ऑल यू हैव टू डू इज गूगल पे जाके आप डाल सकते हैं कि लिस्ट ऑफ बैंड जर्नल्स बाय यूजीसी ऐसा करके, तो उसमें आपका आ जाएगा. तो दोज आर द लिस्ट जो आपको क्रॉस करनी है, जिसमें आपको नहीं डालना. ठीक है, कैन आई गो अहेड? ठीक है, हाउ टू राइट अ रिसर्च पेपर. So obviously as we emphasize ki I cannot put more emphasis than ki how this thing can be very much beneficial. अच्छा, एक और मिथ होता है, अभी थोड़ी देर पहले किसी ने पूछा कि सर हम तो अंडर ग्रेड के हैं, तो या प्रथम ये मत पूछो कि ये अच्छा है कि वो बुरा है, ये वेस्ट ऑफ टाइम है, बाद में पूछ लेना. ठीक है. सो समवन आस्क्ड मी कि मैं तो अंडर ग्रेड में हूँ, मैं कैसे पब्लिश करूँ. आपको जान के आश्चर्य होगा कि हमारे अंडर ग्रेड के स्टूडेंट्स भी अब पब्लिश करते हैं. 2016-17 में अगर आपको पता हो जीएसटी डीमोनेटाइजेशन आया था, तो देयर वाज अ स्टूडेंट फ्रॉम गुरुचरण बग्गा. सो ही पब्लिश्ड रिसर्च पेपर्स ऑन, ही वो कॉमर्स का स्टूडेंट था, बिजनेस स्टूडेंट था वो. उसने जीएसटी और इफेक्ट ऑफ डीमोनेटाइजेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी, जीएसटी का क्या इम्पैक्ट होगा, फ्यूचर जो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस हैं, उस पर उसने रिसर्च पब्लिश की थी. ऐसा कोई हाई फंडू बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ रिग्रेशन एनालिसिस कुछ भी नहीं किया था. उसने सिंपल एक लिट सर्वे ही किया था मेरे ख्याल से. बट देन इट गॉट पब्लिश्ड एंड इट हेल्प्ड हिम get into Sunny Buffalo with a good scholarship, even though he was a very average student. Again, एक बच्चे ने केशव सुले है, तो what I'll do, I'll give you a glimpse of a few research papers as well. Keshav Sule wrote a paper on cyber security. Now one would wonder कि cyber security पे एक 12th का बच्चा क्या लिख सकता है. तो सही बात है, उसने बहुत ज्यादा कुछ नहीं लिखा. He started with what is cyber security, types of importance of cyber security in today's connected world. उसका implication क्या है, किस किस टाइप के challenges हैं, आगे corporate में क्या क्या challenges आ सकते हैं. तो उसने बेसिक एक लिट सर्वे लिखा था, फ्यूचर स्कोप लिखा था. दैट वाज अ गुड स्टार्ट बिकॉज ही वांटेड टू गेट इनटू कंप्यूटर साइंस, और उसमें भी वो साइबर सिक्योरिटी में ही इंटरेस्टेड था. तो इट गॉट पब्लिश्ड एंड इट वाज अ गुड पेपर. ठीक है. तो ऐसा जरूरी नहीं है कि बिल्कुल रिसर्च पेपर का मतलब हो कि बिल्कुल पाथ ब्रेकिंग ऐसी रिसर्च करनी है जो आज तक करी नहीं हो. नहीं, इट कुड बी अ लिटरेचर सर्वे, इट कुड बी समथिंग कि फाइंडिंग कोई रिसर्च हमको मिली और उसमें कुछ गैप दिख रहा है, या किसी और मेथोडोलॉजी से हम उसको अच्छा कर सकते हैं या फिर डिफरेंट कर सकते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं. किसी डिफरेंट टूल को यूज करते हुए, किसी डिफरेंट मेथोडोलॉजी को यूज करते हुए कोई कंपटीशन किया है हमने कुछ कंपैरिजन दिखाया कि ये एल्गोरिथम यूज करके कोई रिजल्ट पे हमको ऐसे अराइव करना है, और कुछ डिफरेंट एल्गोरिथम से किसी और तरीके से आ रहा है, क्या डिफरेंस आ रहा है, ये सब चीजें भी बता सकते हो आप. राइट. अगर फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंस में आप जा सकते हो कि स्टॉक डेटा उठा के हम उस पर कोई स्ट्रैटेजी लगा सकते हैं कि ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी कितना काम करता है, कितना रिटर्न देता है, कितना रिस्क है इसमें. तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच कैन बी डन. राइट. लेट्स गो अहेड. ठीक है. तो बेसिकली रिसर्च पेपर इज एन piece of academic writing based on its author's original research on a particular topic and the analysis and interpretation of research finding. अब यहाँ पे जो ओरिजिनल रिसर्च है, इट्स मिसलीडिंग. जैसे मैंने बोला कि हम लोग यार बच्चे हैं, अभी तो 22 साल के हैं, 21 साल के हैं, 17 साल के हैं, तो हम ओरिजिनल रिसर्च कैसे करेंगे. तो वही मैं बोल रहा हूँ, जैसे जितेंद्र ने किया कि उसने कुछ रिसर्च या कुछ उठाया फॉरेन में जो रिसर्च हो चुकी है अमेरिका में, और वैसी रिसर्च यहाँ तो नहीं है, तो इंडिया के लिए दैट इज न्यू, इट्स एन ओरिजिनल रिसर्च. ऑल्दो इट माइट बी कि जो मेथोडोलॉजीज, जो थिंकिंग थी वहां के लिए ठीक है, वहां हो चुका है तो वहां पे हो चुका, पर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो इट्स ए न्यू थिंग. सो राइट, ओरिजिनल रिसर्च यानी कि उसका इंटरप्रिटेशन इज अप फॉर डिस्कशन. तो अपन बोल सकते हैं कि हमारे लिए यूएस के लिए तो इंडिया के लिए तो इट इज एन ओरिजिनल रिसर्च. राइट. एंड देन द वे यू एनालाइज एंड इंटरप्रेट,
इवन तो ऐसा भी हो सकता है कि रिसर्च दोनों जगह सेम ही हुई हो, बट द वे यू एनालाइज इट, आप किसी और तरीके से एनालाइज कर रहे हो या इंटरप्रेट कर रहे हो रिसर्च को, दैट ऑल्सो मेक्स अ डिफरेंस. ठीक है, तो रिसर्च इज बेसिकली अ वे टू एन इन्वेंशन और अ सोल्यूशन टू अ साइंटिफिक क्वेश्चंस. नाउ दिस इज वेरी मच लिमिटेड टू साइंटिफिक क्वेश्चंस नहीं बोलूंगा, बिजनेस क्वेश्चंस भी हो सकता है, इन द फील्ड ऑफ बिजनेस भी आप कर सकते हो ये चीज. ठीक है, कॉमर्स में भी कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है. Now, why do you need to learn how to write a research paper? तो ये हमने already discuss कर लिया है, but I'll emphasize it or say it again कि once you go to college, once you go to masters, your PG or graduate degree or an undergraduate degree, you'll have to write a lot. आपको research papers, आपको काफी सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी. So it is good that you spend some time right away. अभी हम पढ़ते पढ़ते अभी हम अगर थोड़ा टाइम इस पे बिताएंगे तो विल गेट टू लर्न कि हाँ राइटिंग कितनी डिफिकल्ट हो सकती है, हाउ मच व्हाट डज इट इन्वॉल्व टू राइट समथिंग गुड, राइट. थोड़ा सा फैक्ट बेस्ड हो जिसमें हमने साइटेशंस दे रखे हैं, सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी. वहां पे अगर थीसिस लिखना हो, वहां पे कुछ असाइनमेंट्स करना, तो दैट विल रियली हेल्प यू. ठीक है, तो अपना जो प्रेजेंटेशन है बेसिकली स्टेप बाय स्टेप गाइड है फॉर मोस्ट ऑफ यू टू एक्सपेक्ट हाउ टू राइट अ बेसिक रिसर्च पेपर. अच्छा, मास्टर्स में भी रिकमेंडेड है, पीएचडी के लिए तो मस्ट है. क्या आपको पता है कि पीएचडी में यूएस में ऑन एन एवरेज 12 से 15 रिसर्च पेपर पब्लिश करता है बच्चा. कोई भी कैंडिडेट है, मैंने जितना देखा है 12 से 15 ऑन एन एवरेज रिसर्च पेपर पब्लिश होते हैं. इंडिया में दैट नंबर इज प्रॉब्ली 2 to 4, उससे ज्यादा नहीं है, मतलब 1 to 5 भी बोल सकते हो. तो यूएस में 5 गुना ज्यादा रिसर्च करते हैं, मतलब एक पीएचडी से इतना एक्सपेक्टेड रहता है. How much time, अच्छा Jaspreet has asked, how much time does it take to publish a paper in journal? Again, it depends on journal to journal. बड़े जितने journals हैं, that will take more time. Conferences might be more relatively easier to accept your paper. So Arun sir explain करेंगे थोड़ी देर में कि how what is a good strategy to go about this thing, कि हम कहाँ पे अप्लाई करें, कॉन्फ्रेंस में डालें कि पब्लिकेशन में डालें. I am a programmer. Does coding an application or a piece of code can fall under research? Yes, it can, but you'll have to put it or formulate in such a way कि हाँ ये how it is different or how it is हमने ऐसा नया क्या किया है इसमें, किस टाइप की चीज डाली है which is different or how it is authentic. ठीक है. अच्छा, रजत का क्वेश्चन है कि आई हैव 2 रिसर्च पेपर्स इन प्रोमिनेंट journal and 1 in conference, but these are related to civil engineering field, and if I choose to go into a different field which is business analytics or any other field other than civil engineering, so those publications would be relevant or helpful. To be very frank, yes, that will be helpful. देखो, ग्रेजुएट एडमिशन कमेटी ये नहीं देख रही कि तुमने बीए में किया है कि हाँ दोनों पे आ रहा हूँ, तन्वी के क्वेश्चन पे भी आ रहा हूँ. ये नहीं देख रही वो तुम्हारे रिसर्च पेपर से क्या जानना चाह रही है. उनको क्या मिल रहा है कि दिस गाय हैज अ, उसका जो बेंट ऑफ माइंड है टुवर्ड्स रिसर्च है, इसको अगर मौका दिया जाए तो ये रिसर्च कर सकता है किसी भी फील्ड में. ऑब्वियसली तुम सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो तो तुमने सिविल की रिसर्च करी होगी, बट दैट मेक्स सेंस. बट आप बोलो कि मैं बीए पे करूं तो वो उनको वो भी दिखाएगा कि यस यार, ये बच्चे को और ज्यादा मोटिवेशन दिखेगा कि ये स्विच ओवर करना चाहता है बिजनेस एनालिटिक्स में. तो इसने न सिर्फ इस फील्ड के बारे में पढ़ा, बट इसमें रिसर्च करके कुछ अच्छा पब्लिकेशन भी तैयार किया. तो बोथ आर गुड. आई वुड से सिविल में अगर आपने डाल चुके हो तो वो कोई हार्मफुल नहीं है, वो कहीं भी नेगेटिवली आपको इम्पैक्ट नहीं करेगा. बट देन अगर आप आपकी इंटेंडेड फील्ड में पब्लिश कर रहे हो तो और अच्छा है. ठीक है. और टू बी वेरी फ्रैंक, ऑन अ टेंजेंशियल नोट्स, रजत गुप्ता, आप सिविल से बीए में मत जाओ. सिविल से आपको मैं एक ऐसी फील्ड बताऊंगा जिससे आप एनालिटिक्स में जा सकते हो. इट इज ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स. It has a lot of courses and research related to optimization that आप easily वहाँ से analytics में switch over कर सकते हो. One of our student, Mr. Sagar Patni, is conducting a research, a PhD. UFL में उनकी PhD चल रही है transportation में. And trust me, अपने वो जितनी Python में कोडिंग करते हैं, जितना optimization उन्होंने पढ़ा है, अपने analytics के बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा. So rather than switching over to BA, I would rather go for a transportation and logistics field for Rajat Gupta. Tanvi, did I answer your question? Is it important to write a research paper in intended field? हाँ ठीक है, चलो let's go ahead. Gaurav, Arun sir will answer where does these conferences happen and how can we know about it थोड़ी देर में. ठीक है. So basically simple, मैं थोड़ा सा जल्दी जाऊंगा कि कैसे करना है. कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन रहता है कि सर किस टॉपिक पे लिखें, हमको तो समझ में ही नहीं आता.
तो दैट इज कॉल्ड आइडिएशन, और कैसे हमको आइडिया लाना है। तो जैसे मैंने बताया, एक तरीका तो ये है, आप अपनी फील्ड में बड़ी बड़ी जो यूएस की यूनिवर्सिटीज हैं, यूएस यूके या जहाँ पे भी रिसर्च हो रही है, उनके फैकल्टी के वेब पेजेस पे जाइए, उनके रिसर्च पेपर्स पढ़िए, राइट, एंड उसको देखिए फिर कि उनमें से कुछ हमको इंटरेस्ट कर रही है क्या। उसमें से कुछ ऐसी आधी चीजें तो देखो, मान के चलो 70 से 80% रिसर्च तो आपके ऊपर से जाएगी, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि यार ये इकोनॉमिक्स का कोई पेपर होगा, या इकोनॉमिक्स वाला भी इतनी मैथ्स कर रखा होगा कि आपको पता नहीं पड़ेगा, आपको लगेगा यार इकोनॉमिक्स में इतनी मैथ्स होती है क्या, सिविल में इतनी मैथ्स होती है क्या, सिविल में तो हम बहुत प्लस माइनस में ही चलते हैं, पर इतनी सारी मैथ्स होती है क्या। तो 80% मान के चलिए आपको रिसर्च समझ में नहीं आएगी, बट स्टिल यू हैव टू कीप ऑन फाइंडिंग एंड सी, वो 10% 20% पेपर्स ऐसे होंगे जिसमें आपको कुछ कुछ समझ में आएगा, तो प्रॉबेबली यू कैन स्टार्ट इन दैट डायरेक्शन। दूसरा हो जाएगा कि आपको जो टॉपिक आपके दिल के नजदीक हो गया, आपको साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट आता है, आपको क्रिप्टो करेंसीज में इंटरेस्ट आता है, तो स्टार्ट रीडिंग। द थिंग इज टू स्टार्ट रीडिंग, यू विल गेट, रीडिंग करके ही आइडिया आएगा आपको। संदीप सर या अरुण सर रिसर्च टॉपिक नहीं बताएंगे, आप ऐसे आके नहीं बोल सकते कि सर मेरे को कंप्यूटर साइंस में रिसर्च टॉपिक, तो मैं नहीं बता पाऊंगा, वो काम आपका है, बट मैं आपको प्रोसेस बता सकता हूँ कि कैसे। तो यू हैव टू रीड अ लॉट ऑफ रिसर्च पेपर, तो उसमें आपको बहुत सारे सोर्सेज मिल जाएंगे। गूगल स्कॉलर है, दैट इज वन गुड ऑप्शन। गूगल, जैसे गूगल सर्च है तो रिसर्च पब्लिकेशंस का जो गूगल है दैट इज गूगल स्कॉलर। देन archive.org है, मैं उनके लिंक्स आपको बाद में शेयर कर दूंगा। So these are some places where you can get free access to a lot of quality research papers. So that is the place where you can go and read, start reading related to your topics. तो जितना आप रीड करोगे उतना आपके आइडियाज आते जाएंगे। That is one way, sure way to find out what to write about. Second is obviously आपकी जो फेवरेट यूनिवर्सिटीज हैं जो टारगेट कर रहे हो, वहाँ के जो फैकल्टी हैं उनकी रिसर्च पढ़िए आप, तो उनसे रिलेटेड अगर आप कुछ लिखेंगे तो आपको उल्टा और अच्छा लगेगा, या बाद में उनको बोला सकते हो कि सर ऐसा मैंने कुछ किया है, ठीक है। तो जो फॉर्मेट होता है रिसर्च पेपर का, यू स्टार्ट विद अ टॉपिक, देन देयर इज एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट इज बेसिकली समरी, एक अपन एक पैराग्राफ में अपन पूरा पेपर में हम क्या कहना चाह रहे हैं उसको लिख रहे हैं, तो दैट हैज टू बी अ वेरी क्रिस्प एंड वेरी आई वुड से बहुत ही तरीके से लिखा हुआ एक समरी होना चाहिए। एंड देन यू इंट्रोड्यूस द टॉपिक एंड देन यू टॉक अबाउट द मेथोडोलॉजी। यू नीड टू हैव इन सम केसेस लिटरेरी, अगर लिट सर्वे नहीं है, लिट रिव्यू नहीं है, तो you might have to have certain data, right, in order to start working on that. Then once you have done some analysis, कुछ अगर आपने कर लिया analysis, तो कैसे interpret कर रहे हो research को, उस पे आपने आगे क्या proposal दिया, क्या solution दिया, and finally you conclude it. And after conclusion you give a future scope कि आगे इसमें क्या क्या किया जा सकता है। Eventually bibliography and references are quite important, because obviously you'll be reading a lot, you'll be taking cues from a lot of research papers, so you have to cite those कि मैंने यहाँ से पढ़ा, उसका citation आपको देना है, references देने हैं। And finally you'll have to put a lot of emphasis on your proofreading and formatting. That's the must. हर जर्नल या हर पब्लिकेशन का अलग कुछ कुछ फॉर्मेट्स रहते हैं, तो you have to adhere to that as well. That is one important thing. So this is the simple flow chart of how to go about research papers. ठीक है, इनका जो ये रहेगा, इसको इनका जो डिस्क्रिप्शन है बेसिकली यही है कि टॉपिक आपको, जैसे अपन ने डिस्कस किया, टॉपिक कैसे कहाँ से आना है, एब्स्ट्रैक्ट है, ब्रीफ समरी ऑफ रिसर्च पेपर, क्रिस्प होना चाहिए, टू द पॉइंट। इंट्रोडक्शन में बेसिकली नो हाउ ऑफ द पेपर की क्या क्या, क्यों हम लिख रहे हैं, कैसा लिख रहे हैं, क्या इंट्रोडक्शन है। एंड अगेन इट हैज टू बी अ वेरी, you have to focus a lot on your introduction as well. Why? Because first impression is the last impression. तो पहला जो introduction ही अगर अच्छे से लिखा हुआ है तो आगे भी जाएगा कोई भी पढ़ने आपका पेपर के। अगर वो इसी में कुछ mistakes हैं, उसमें clear समझ में नहीं आ रहा है, या grammatical mistakes हैं या कुछ और है, तो someone will not go further, right? उसको लगेगा waste of money हो गया कि मैंने खरीदा ये पेपर, किसी वहां से मजा नहीं आया, पर और हो सकता है आपका पब्लिश ही ना हो, जो बंदा वेट करेगा उस पेपर को, वो बोले हो सकता है कि नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा वो चीज। Methodologies में you are talking about the tools for approaching any problem, your methods and step wise approach, आगे का scope of work, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। हालांकि ये चीजें मेरे ख्याल से अरुण सर ज्यादा ढंग से आपको करेंगे डिस्कस, तो मैं बेसिकली स्किम कर रहा हूँ इस चीज को। डेटा कलेक्शन, अब देखिए प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों हो सकता है। प्राइमरी जैसे कि जितेंद्र ने किया, चौराहे पे खड़े होके एक्चुअली प्राइमरी डेटा कलेक्ट किया उसने ट्रैफिक फ्लो का। सेकेंडरी हो सकता है कि इंटरनेट से ही कलेक्ट कर रहे हैं हम,
कि याहू फाइनेंस से मैंने स्टॉक डेटा उठा लिया गूगल का लास्ट 6 साल का 8 साल का, तो दैट इज बेसिकली सेकेंडरी डेटा कलेक्शन, जो इंटरनेट से भी हो सकता है, कुछ रिसर्च से हो सकता है. अनदर गुड वे इंटरनेट इज कम अप विथ इज कि आपको डेटा नहीं मिल रहा तो यू कैन ऑलवेज क्रिएट डेटा थ्रू गूगल फॉर्म्स. आप अपना खुद का रिसर्च प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस यू नीड टू हैव इन द डेटा एंड गूगल फॉर्म्स पे जाके एक फॉर्म बनाइए, उस पर लिखिए एंड देन शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स या जो भी इंटेंडेड डेमोग्राफिक है. हो सकता है आपको 100 लोगों का डेटा कलेक्शन मिल जाए. तो दैट्स इंटरनेट हैज कम अ लॉन्ग वे टू प्रोवाइड दीज काइंड ऑफ थिंग्स आजकल. नहीं तो पहले के जमाने में तो डेटा कलेक्शन यूज्ड टू बी प्रीटी डिफिकल्ट. साइंटिफिक अगर देखें, साइंटिफिक में अगर केमिस्ट्री में कुछ कर रहे हैं तो इट कुड बी एम्पेरिकल डेटा कि हम खुद से लैब में कर रहे हैं डेटा, वो सारी चीजें कर रहे हैं, बट अपन इतना दूर तक तो नहीं जाएंगे, राइट. एनालिसिस कि आप क्या कर रहे हैं, एनालिटिकल टूल पैक्स, ग्राफ्स, कैसे आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने डेटा को, पाई चार्ट से कर रहे हैं, बार चार्ट से, इस टाइप की एनालिसिस लगा रहे हैं. आर यू अप्लाइंग अ रिग्रेशन एनालिसिस और अ कोफैक्टर एनालिसिस और अ पीसीए. इट ऑल डिपेंड्स ऑन द स्कोप ऑफ द प्रॉब्लम, किस टाइप की प्रॉब्लम आप डील कर रहे हैं और आप किस टाइप का सोल्यूशन निकालना चाह रहे हैं, राइट. सो इट अगेन डिपेंड्स कि बहुत रिगरस भी हो सकता है बहुत एक लिटरेचर रिव्यू हो या लिट सर्वे हो तो उसमें ज्यादा कुछ हो ही नहीं इस टाइप की चीजें. So it all depends on your research कि किस लेवल पे हम करना चाहते हैं, क्या रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं. It all depends on you. And once you're done with your analysis, you could always go back to how you have identified the solution to the problem and any proposals or recommendations which you have given, right? And you finally conclude and the future prospects of that research. जैसे उस बच्चे ने साइबर सिक्योरिटी पे अगर डाला तो उसने आगे अगला फ्यूचर प्रोस्पेक्ट बता दिया कि अगले पेपर में मैं क्या करने वाला हूँ, क्या मेरा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है. हालांकि उसने उसके आगे कुछ किया नहीं, उसका काम हो गया था उसके बाद, बट देन दिस इज हाउ यू कैन कंक्लूड. ठीक है, बिब्लियोग्राफी एंड रेफरेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट. यू कैन नॉट pick up anything from some author or some paper without consulting it. that would be called plagiarism, right? तो अपने को जो भी हम कहीं से कुछ उठा रहे हैं तो रेफरेंस करना है उसको. इट हैज अ वेरी स्पेसिफिक स्टाइल. वहां पे आप लिंक डाल सकते हैं और नीचे लिंक पे क्लिक करें तो नीचे बिब्लियोग्राफी में या रेफरेंसेस में जाके आपको ले जाएगा. प्रूफ रीडिंग एंड फॉर्मेटिंग एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा वर्ड में टाइप करते हो उसके बाद भी वो गलत करते हैं, तो वो नहीं करना है. स्पेलिंग्स करेक्ट होनी चाहिए, पंक्चुएशन शुड बी एट करेक्ट spaces. You have to use the grammar correctly. For that there are so many tools coming which are available to us, which is one of them is Grammarly. Paraphrasing सारी सही से होनी चाहिए, notation सारे सही होने चाहिए, editing सही होनी चाहिए, structure of flow हमारे पेपर का अच्छा होना चाहिए, font type, size, line spacing, it has to be consistent. So you have to be very consistent and very diligent, attention detail oriented basically. So एक research paper आप बनाएंगे तो आपको पता पड़ेगा कि कितना सारा मेहनत लगता है. हालांकि मैंने देखा है कई सारे स्टूडेंट्स को, आई वुड नॉट नेम देम, और इस साल भी और हर साल ही वो लोग क्या दे बाय सम रिसर्च पेपर्स, अच्छे बिल्कुल एकदम बढ़िया क्वालिटी के मतलब ले आते हैं पेपर्स, और मुझे देख के समझ में आ जाता है कि इन्होंने तो नहीं लिखा है, बिकॉज आई एम अवेयर ऑफ देयर कैपेबिलिटीज. तो बाद में पूछो तो पता पड़ता है यस सर हमने बनवाया किसी से. वो बना देते हैं 6 से 8 हज़ार रुपए में एक रिसर्च पेपर यहाँ पे बनता है. बट डोंट आस्क मी, यू आस्क मी ओनली व्हेन यू आर इंटरेस्टेड इन डूइंग इट योरसेल्फ. बिकॉज आप खुद का एक पब्लिश करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम ऊपर जाएगा, आप कुछ लर्न करोगे, राइट. इफ यू आर इंटरेस्टेड इन कि नहीं बाहर से बनवाना है तो डोंट इवन आस्क मी, डोंट इवन टेल मी कि आपने बाहर से बनवाया है. मुझसे पूछो भी मत आके कौन से पेपर में हो रहा है, राइट. अगर आप इंटरेस्टेड हो खुद करने में तो यस आई एम ऑलवेज अवेलेबल. बाहर से अगर आप कर रहे हो तो मुझे इंप्रेस करने की कोशिश मत करना कि सर ये है, क्योंकि मुझे देख के समझ में आ जाता है बच्चे को देख के कि इसका पेपर है कि नहीं. ठीक है. सो गेटिंग अ गुड एक फाइनल प्रोडक्ट जो रिसर्च पेपर में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. Biotech graduate and I don't have a guide nor an access to lab. Not having a guide is fine. Access to lab, so you'll have to figure out a way where you don't, मतलब आपको ऐसा कुछ टॉपिक उठाना पड़ेगा प्रगति जिसमें आपको लैब की जरूरत ना पड़े. बिकॉज आपकी फील्ड में यूजुअली यस बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें लैब लगती है, तो उसमें अपने को बैठ के सोचना पड़ेगा थोड़ा सा कि क्या कर सकते हैं. यू हैव टू फिगर आउट समथिंग. You can get into something where instead of a lab you need some data आपको रेडीमेड कहीं से मिल जाए, उस पर कुछ कंपटीशन करनी पड़े. ऐसा कुछ अगर कर सकते हैं तो बिल्कुल सही है, बिकॉज नॉट हैविंग एक्सेस टू लैब इज चैलेंजिंग, राइट. अगर आपके पास लैब नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे, बट देन यू कैन ऑलवेज थिंक थ्रू और थिंक ऑफ समथिंग
जहाँ पे आपको लैब के नंबर्स या डेटा कहीं से रेडीमेड मिल जाए एंड यू डू सम एनालिसिस, राइट? ठीक है, डूज फॉर अ रिसर्च पेपर, बेसिकली हार्ड वर्क, जैसे मैंने बोला कि हार्ड वर्क का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है कि आप ऑब्वियसली कहीं से खरीद सकते हैं पेपर, पीपल बी माई गेस बट डोंट टेल मी, बट जितना आप लर्निंग इसमें करेंगे और जो कॉन्फिडेंस लेवल आपका ऊपर जाएगा कि यस इफ आई कैन डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स आई कैन डू एनीथिंग इन वर्ल्ड। अब मैं एमएस में जाऊंगा फुल्ली कॉन्फिडेंस होके जाऊंगा, राइट, कॉन्फिडेंट होके जाऊंगा। तो क्या क्या आप खुद ही देखिए ना, आपकी अटेंशन टू डिटेल सुधर रही है, आपकी एक पेपर लिखने की क्षमता में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, आपकी ग्रामर, आपको कैसे वर्ड में कैसे टाइप करना है, कैसे आपको फॉर्मेटिंग करनी है, बहुत सारी चीजें। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी रिसर्च स्किल, आपकी कि डेटा को कैसे मेरे को कॉम्प्रीहेंड करना है, उसको कैसे प्रेजेंट करना है, उसको कैसे आर्टिकुलेटली लिखना है, ऑल दीज थिंग्स। एंड इनफैक्ट इफ यू आर वर्किंग इन अ टीम, इफ यू 3 of you are working together, आपकी टीम स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, these are getting improved. So think of it as a project which is going to inherently improve a lot of things for you, right? तो मेरे ख्याल से तो ईमानदारी से करिए, जैसा भी प्रोडक्ट है, मैं ये नहीं बोल रहा कि बहुत अच्छा होना चाहिए, हो सकता है पहला जो प्रोडक्ट हो आपका मीडियोकर हो या बहुत एकदम अप टू द मार्क ना हो, बट थिंक दैट इज अ स्टार्ट वेयर कहीं ना कहीं से स्टार्ट होगा, राइट? तो मेरे ख्याल से तो आपको खुद से करना चाहिए एंड यू हैव टू वर्क हार्ड. As far as mentors are concerned, we can help you in terms of a guide की पेपर पब्लिकेशन में कैसे जाना है. As I'm certainly I cannot help you with आपका सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई डाउट है या कंप्यूटर साइंस में आपको ये छापना है कि वो छापना है, उसमें मैं शायद हेल्प नहीं कर पाऊँ, बट कैसे आपको जाना है आगे, उसमें मैं और अरुण सर आपको हेल्प कर सकते हैं. ठीक है, गौरव ने पूछा इज इट इम्पोर्टेंट टू हैव अ गाइड फॉर अ रिसर्च पेपर. है तो अच्छा है, नहीं है तो भी अपने स्टूडेंट्स अप्लाई खुद से करते हैं, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपका गाइड होना चाहिए, राइट? है तो अच्छा है, पर उसके भी अपने लिमिटेशंस हैं कि देन यू विल हैव टू गो एज पर योर गाइड्स विशेस. अब आपका जो गाइड है वो अगर किसी पर्टिकुलर दिशा में जाना चाहता है कि उसको नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग भी करना है, बट आपका मन है कि नहीं यार मैं साइबर सिक्योरिटी पे करूँ, तो दोनों के थॉट प्रोसेस अलग है, तो उसमें थोड़ा सा क्लैशेस होंगे, फिर आपको ऑब्वियसली अपने गाइड के हिसाब से चलना पड़ेगा. तो गाइड अगर है और आपकी थिंकिंग अलाइंड है, इट्स गुड, नथिंग लाइक इट, है ना? हो सकता है ही हैज सम गुड आइडियाज, आपकी रिसर्च क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी, प्लस हो सकता है पब्लिकेशंस की क्वालिटी भी इंप्रूव हो जाएगी, बिकॉज एज अ गाइड हिज जॉब इज टू गेट यू अ पब्लिकेशन इन अ गुड रिसर्च पेपर. अपनी शायद इतनी औकात नहीं रहे कि अपन को बहुत अच्छे पेपर में डाल पाए, तो वो फायदे मिलेंगे, बट देन वो तभी पॉसिबल है जब आपका गाइड भी आपके जितना ही एंथुसियास्टिक है. आपका डेडलाइन है कि मुझे सर अक्टूबर से पहले छापना है, बट वो बोल रहा है नहीं यार अपन तो अगले साल अप्रैल तक छापेंगे, तो फायदा नहीं है, बिकॉज हम लोग की टाइमलाइन क्या है, दोज पीपल हु आर अप्लाइंग फॉर 2021 फॉल, अपने को अक्टूबर तक पब्लिकेशन होना चाहिए हाथ में, बिकॉज दैट्स द टाइम व्हेन यू विल स्टार्ट द एप्लीकेशन. आर यू गेटिंग दैट? तो अगर उसके बाद मिला तो फायदा नहीं है, तो अपन लिख नहीं पाएंगे ना. आप जैसे इसने पूछा है जसप्रीत ने, रिसर्च पेपर इज अंडर पब्लिकेशन प्रोसेस, कैन बी इंक्लूड इनटू अ प्रोफाइल? यस, वी कैन राइट कि आई एम इन द प्रोसेस ऑफ दिस दिस दिस, और मैं रिसर्च पेपर का कुछ जस्ट डाल सकता हूँ, पर वो इतना इफेक्ट नहीं करेगा जितना एक पब्लिश्ड पेपर करेगा, राइट? तो हमको अभी से दोज पीपल हु आर अप्लाइंग फॉर 2021 अभी से इस पे लग जाना है, ताकि बाय अक्टूबर वी हैव अ गुड प्रोडक्ट, फाइनल एक फिनिश प्रोडक्ट इन आवर हैंड्स, राइट? डोंट प्लेजराइज, डोंट इटरेट रीइटरेट, बेसिकली डोंट प्लेजराइज. सबसे बड़ा वो है कि अब इसमें तो लिखा है पैराफ्रेज भी नहीं करो, तो मैं थोड़ा सा एक फाइन लाइन है कि कितना पैराफ्रेज करो कितना नहीं करो. प्लेजरिज्म चेक वगैरह करना है तो कर सकते हैं, यस, बट देन एकदम अपने को फेक नहीं करना है, प्लेजराइज नहीं करना है, और थोड़ा सा मेहनत से करेंगे आप तो ऑब्वियसली कंटेंट अच्छा निकलेगा. ठीक है. टाइप ऑफ रिसर्च पेपर जैसे बोला था, लिट रिव्यूज होते हैं. लिट रिव्यूज बेसिकली जैसे कि लिटरेचर सर्वे हो गया कि क्या होता है साइबर सिक्योरिटी, किस टाइप का होता है, क्या चैलेंजेस, वैसा. और दूसरा एक्सपेरिमेंटल, जैसा कि प्रगति ने बोला यहाँ पे कि एक्सपेरिमेंटल इज बेसिकली वेयर यू आर कंडक्टिंग सम एक्सपेरिमेंट्स वेयर यू आर जनरेटिंग योर डेटा फ्रॉम स्क्रैच, राइट? तो वो अलग टाइप के हो गए. देन रिसर्च पेपर्स जो हो गए कि कॉन्फ्रेंस में जाते हैं कि जर्नल में, तो अरुण सर अभी थोड़ी देर में बताएंगे कि कॉन्फ्रेंसेज में मे बी यू कैन स्टार्ट विद कॉन्फ्रेंसेज. एक बार कॉन्फ्रेंस में अगर हो जाए तो उसके बाद शायद जर्नल में पब्लिकेशन होना थोड़ा सा इजी रहता है, तो ही विल सर्टेनली गाइड यू ऑन दैट. एंड आई थिंक समवन आस्क्ड मी लिटिल फ्यू मिनट्स बैक कि कैसे पता पड़े कौन सा जर्नल अच्छा है और कौन सा नहीं है. तो इम्पैक्ट फैक्टर आपको देखना पड़ता है. व्हाट इज एन इम्पैक्ट फैक्टर? सो बेसिकली इट्स अ मेजर
or the frequency with which an average article in a journal has been cited, यानी कितने लोग उस जर्नल से जाके कुछ साइटेशन उठा रहे हैं, कुछ रेफरेंस उठा के अपने पेपर में डाल रहे हैं हर साल. तो जितना इम्पैक्ट फैक्टर ज्यादा होगा, मतलब ऑन एन एवरेज हर पेपर को, जैसे अगर इम्पैक्ट फैक्टर 4 है किसी जर्नल का, विच मीन्स ऑन एन एवरेज हर पेपर को 4 बार एक्सेस किया गया है किसी और पेपर को लिखने के लिए, यानी कि इस जर्नल की रिसर्च इतनी तगड़ी है कि लोग इसको बार बार रेफर करते हैं, राइट? तो इम्पैक्ट फैक्टर इज वन. देन देयर आर सम इंडेक्सेस, साइंस साइटेशन इंडेक्स है जो बताता है बेसिकली कि इंडेक्स एक बेसिकली इंडेक्स देता है, एक नंबर देता है, असाइन करता है कि जितना अच्छा पेपर होगा उतना बढ़िया नंबर होगा उसका. सो दीज आर सर्टेन फैक्टर्स विथ विच यू कैन फिगर आउट कि कौन से जर्नल में हमको डालना है कि नहीं, राइट? तो ऑब्वियसली यू विल पुट इट और सेंड इट टू अ लॉट ऑफ जर्नल्स, और जहां से फिर एक्सेप्ट हो जाए वो भी रहता है. अनदर थिंग यू हैव टू कंसिडर इज टाइम, कि अगर IEEE में मान के चलिए कि एक एवरेज एक्सेप्ट होने का टाइम 10 महीने है, पर अपने पास 10 महीने, तो probably will not do that, we'll do it in some other paper. So I'll share a list of journals and indexes, and I'll also share some material related to conferences कौन सी हैं for each branch, तो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है? Some journals जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, साइंस डायरेक्ट है, एल्जेवियर है, अर्बन साइंस है, जर्नल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च. सो देयर आर सो मेनी जर्नल्स. IEEE है, तो काफी सारी जर्नल्स हैं जहाँ पे हम जाके अपना लक ट्राई कर सकते हैं. Again, from my side, what I would say, to steal idea from one person is plagiarism. Again, we are taking it in a very joking way. From many is research. ठीक है. Again, like to invite Mr. Arun Shukla. जैसे मैंने बताया, इन्होंने 15 से ज्यादा रिसर्च पेपर कॉन्फ्रेंसेज और जर्नल्स में इन्होंने डाल चुके हैं. Some of his papers and publications, whether which are into mechanical, energy, as well as in business, तो IIM इंदौर, IIT रुड़की और IIT चेन्नई में इनके पब्लिश हो चुके हैं. So he has a lot of experiences and he would like to share his experiences, और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहेंगे कि उन्होंने अपने स्टूडेंट टाइम में कैसे क्या क्या रिसर्च पब्लिश करी और आप कैसे कैसे इनके एक्सपीरियंस का लाभ उठा सकते हैं, ठीक है? तो I'll ask Arun sir to I'll share the screen, his screen with you all. अरुण सर है ना अभी आप? हाँ सर, शेयर कर लीजिए. कैन यू शेयर योर स्क्रीन अरुण सर? हेलो. हाँ, कैन यू हियर मी अरुण सर? या I'm online sir. ठीक है सर, शेयर कीजिए स्क्रीन. Yeah, I'm sharing it. Just. All of you guys, can you hear Arun sir properly? हेलो. हाँ अरुण सर, आपकी आवाज आ रही है, मुझे सबको आ रही है. आ रही है सर? यस यस. आपका स्क्रीन बताइए जब शेयर करें तो. ठीक है, गूगल पे शेयर कर लेते हैं सर, जस्ट ओनली सो दैट आई कैन जस्ट गिव द सम काइंड ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस. सो कैन आई शेयर? दिख नहीं रही आपकी स्क्रीन मेरे ख्याल से. बाकी लोगों को दिख रही है क्या सर की स्क्रीन? There is something pop-up is coming. You cannot start screen while the other participant. अच्छा, मैं अपनी हटा देता हूँ सर, मैं अपनी शेयरिंग हटा देता हूँ. अरे स्टॉप शेयर कर देता हूँ, आप कीजिए सर, आप अपना शेयर कीजिए सर. One moment, sir. One moment. हेलो. हाँ सर. तेरे शायद आई थिंक सो हो नहीं रही है यहाँ से ये. एक सेकंड सर, देखता हूँ सर. एक सेकंड. हाँ सर, आ गई ना सर? हाँ. गाइस, आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? अरुण सर ने गूगल का पेज एक शेयर किया है. यस, ग्रेट. हाँ सर, दिख रही है सबको. Okay guys, good evening. Myself Arun, and I would like to share my experiences on research papers. And I think so Sandeep sir already have been just told you shared a lot of information with you.
basic information that now I'm going to just share you how to write a research paper basically, and what is the basic procedure to just find out the research papers. Okay. So if I start the research paper, so first I would like to say that research paper is nothing a very big kind of thing that anyone cannot do, right? So whatever whatever in our life we are doing now, likewise if you are going to just search any kind of place or any kind of restaurant, you any kind of thing, this is the basically we are just doing any kind of research. Okay. So the basic thing is that the research that you are doing in day-to-day life, it is not in a proper fashion and or not in a proper order. So we cannot say that ki what we did and what were our procedure. Okay. So now we are now I'm going to just tell you ki how we are going to just to write a good research paper. So for getting the information, first we need to know कि हमारा इसमें बेसिक इंटरेस्ट कौन सा फील्ड में है, राइट? इफ आई थिंक दैट माय इंटरेस्ट इज इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इफ आई से दैट माय इंटरेस्ट इज इन इंजीनियरिंग और एनी काइंड ऑफ रिसर्च इंटरेस्ट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो आवर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, बिकॉज हमें इंटरेस्ट हमारा होगा तो कि हमें कैसे करना और इंटरेस्ट नहीं आएगा. सो बिकॉज इट इज लॉन्ग प्रोसेस, we need to develop a lot of things, right? So सबसे पहले हमें important होता है to find out of research interest. Okay. Now the next thing is that, like if you think this is my area of research, and after getting the area of research we need to know ki how many articles, how many journals, how many research papers already being published. We can say that we need to know कि हमें टॉपिक रिसर्च बारे में कितना ऑलरेडी पता है, राइट? फॉर दैट वी नीड टू नो लॉजिस्टिक एंड चेन सप्लाई मैनेजमेंट, राइट? तो फर्स्ट वी नीड टू फाइंड रिसर्च पेपर ऑन लॉजिस्टिक एंड सप्लाई management. Okay. So research paper on logistic and management, we have to just place plus sign over there and we have to put PDF, right? This one. So you can just know now there are a lot of research papers is coming up. So you have to just open any one of the research papers, you have to go through it, what is already being done till date. Okay. And after that you have to find how I can contribute on this one research paper. Either I can just add something new, or we can I can just add something on extension of the previous one research paper, or I can compare two research papers, or we can just club research papers and just find out the new research things. So this is the basic thing where we can get the idea. For getting the idea, just go to Google and just search old research papers on the area of interest, and after that you have to just read the abstract of that particular paper. Don't read the whole paper at once go, because the synthesis, the methodology, the experiments you may not be able to understand the whole quality of the whole length of the paper. But abstract is always wrote in such a way that you can already understand what our wanted to say over his research paper. So first read only abstract part. After reading the abstract part, you will get to know ki this is the idea where I can pick my topic. Now this is logistic and chain supply management. Now you have to just synthesize ki how many research paper is being written on logistic and chain supply management. Okay. Now logistic and chain supply management is very short topic. So just summarize it. Likewise, I wanted to just share one example. Suppose I wrote a research paper on logistic and management for industries. Okay. If now you have just read by me. Now already I wrote a research paper on for Indian industries.
Now you just to cut short that particular research paper and start your like different industry, like you can say that wholesale market. You can do a research on sabji wala. You can do a research on schools, logistics applied in schools and colleges and different chain markets. So you can just limit your research on particular topics, and after that you can find out कि in this area I can contribute, in this area I can work on it. I can simply just uh, just wrote a research paper. Like sometime before, Sandeep sir says that one of the student wrote a research paper basis the traffic on Indore, right? So you can also write a paper on the basis of logistics and chain supply management, how the traffic will impact Indore market if we apply that particular logistic and chain supply management. So you have to consider the demographic area, you have to consider the government's plans, you have to consider Nagarpalika interference, and also you have to just condition of the roads, and after that you have to condition the logistic. So on this part, you can just conclude a good kind of research paper in the particular of your interest of your field. So now we have decided कि हमने ये रिसर्च पेपर पर्टिकुलर इस टॉपिक पे हमने रिसर्च कर लिया. अब रिसर्च करने के बाद दैट पर्टिकुलर फील्ड के बाद आप उस पर्टिकुलर जो आपने समराइज पर्टिकुलर एनालिसिस करके जो स्मॉल टॉपिक सर्च किया है, आप उस स्मॉल टॉपिक में जाने के बाद आप डिफरेंट रिसर्च पेपर्स को पढ़ेंगे. वी हैव टू जस्ट रीड इट आउट ऑन फर्स्ट abstract, then after that some selective research papers on full length. Okay, after doing this two kind of reading, we'll get to know that how the research paper we can just shortlist for our academic purpose. Basically research papers are two types. You can just write. First one is the academic purpose, and second one is for the industrial purpose. Industrial purpose research papers are basically just sponsored papers. You have to write something on the base on behalf of the organization, and after that organization will just carry forward for their as their own research. And second one is the academic research. Academic, likewise, we students are write research papers. You submit paper on you can say conferences, you can say on journals. Okay, so during the last discussion with Sandeep sir, some few students were asking कि हमें research papers कैसे करना चाहिए, how we start the research. So basically, when you just decide to write a research paper, so there are steps involved in the particular research. Likewise, first one, you have to decide your topic, you have to decide your interest, you अरुण have to सर, decide your sorry field to of interest. disturb. अरुण सर ब्रेक हो रही है वॉइस थोड़ी सी. हेलो, हाँ आ रही है, वो बीच बीच में ब्रेक हो रही है आपकी वॉइस. अभी भी हो रही है सर? नहीं अभी ठीक आ रही है. Okay, so the second one is thing is that हमें after just finalizing a topic, we need to know this research paper is need to be presented. Okay, यदि आपने research paper present नहीं किया तो you need not to know कि हमारे इस research paper में क्या क्या limitations हैं, इस रिसर्च पेपर में क्या प्रोबेबल आउटकम्स हो सकते हैं, या हमारा जो हमने सिंथेसिस किया है, जो हमने इसमें टूल्स यूज किए हैं उसकी रिसर्च के लिए क्या पर्टिकुलरली यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं. फॉर दैट शॉर्टकमिंग्स फाइंड आउट करने के लिए हमारा रिसर्च पेपर प्रेजेंट होना चाहिए. दैट मस्ट बी प्रेजेंटेड इन फर्स्ट प्रायोरिटी. हमारी कहाँ पे होनी चाहिए? आई एम जस्ट राइटिंग ओवर हियर, लेट मी नोट इट डाउन द international conferences. International conferences, national conferences, then seminar. Okay, and then अपना जो डोमेस्टिक कॉलेजेस हैं जहाँ पे अपना हम स्टडी करते हैं, इंदौर के आसपास में जो हमारे सेमिनार या वर्कशॉप जो होते हैं. Okay, so these are the four platforms where we can present a research paper. First one is the international conferences. Guys, really I'm just sharing my experience. When I was a student and engineering college student, I started writing research papers. The kind of response I'm getting from the researchers who are just coming to present their papers, because
this is the work that you are going to do at this stage of time. बेसिकली ये पीएचडी होल्डर्स करते हैं, पीएचडी वाले जो पर्सन होते हैं या फिर जिनको आगे फर्दर रिसर्च में जाना होता है या एकेडमिक रिसर्च में जाना होता है, दे आर डूइंग द बेसिक काइंड ऑफ रिसर्च. ओके, सो इट इज द अर्ली स्टेज. यदि आप अर्ली स्टेज में कॉलेजेस में या फिर अर्ली स्टेज में आप करते हैं और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस को आप अटेंड करते हैं, यू गेट टू नो दैट देयर आर अ लॉट ऑफ डेलीगेट्स. वो डेलीगेट्स होते हैं जो डिफरेंट स्टेट से आए हुए होते हैं, कुछ डिफरेंट कंट्री से होते हैं. दे विल गेट टू नो कि बेटा आप इसमें ये आपकी लिमिटेशन है और आप इसको ऐसा इस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं और ये चीजें आपको एडवाइस करेंगे. सो इट्स बेटर टू जस्ट चूज to present research papers first on international conferences. And if I talk about international conferences are organized by every IITs, IIMs, NITs and some regional colleges as well. So abhi just I came to know when you were Sandeep sir is on discussion, some students were asking कि हमें पता कहाँ से चलता है कि international conferences कहाँ पे हो रही है, national conferences कहाँ पे हो रही है, seminars कहाँ पे हो रहे हैं, वो कहाँ हो रहे हैं. So we need to know, we have to just find out the few IITs and IIMs and we have to visit the web page of particular IIT or IIM. Even before 6 months start पहले ही वहाँ पे notifications होता है कि there is a ongoing international conference on that IIM Indore. This is the topic, this is the subtopic, this theme where you can write the research paper and what is your requirement. So like international conferences, notifications are there for national, for seminar, for workshop, for everything. So you can find over there. Another one place where you can find the details of that is there is a website called allconferences.com. allconferences.com. This is a website. See, here are a lot of topics, subtopic is given there. If you education, business, engineering, computers, health, science, such. So you can search the conference detail by putting and by visiting this one site. So just visit allconferences.com. Here you can find all the listed, most of all the listed conferences which are going to happen in either in India or outside India. And another one thing is that you can also outside India as well, right? If you are going to present your research papers outside India, just select, just find out how many universities, how many just research places are inviting papers. Just write the research paper and they'll present your research paper on your behalf. Okay, and you will join like we are just talking right now. So you have to join by your that particular via online medium, right? So you can also utilize this kind of thing. And second one most important thing, if you just going to attend any international conferences or anything in IITs and IIMs, they will provide you each and everything, the platform, the living, boarding, lodging, whole expenditure being a student. So if as a student you are going there, there is a very nominal fee as in a registration fee, and after that there is a complimentary living, there is a complimentary everything. So this is the also thing you can utilize while writing or presenting research paper. The third one thing, how the research paper can be after that presented for journals. So if your research paper is already presented in the conference, you get how many limitations is having my research papers and how I can improve it. Just improve it, come back, just improve it, and after that just submit the same research paper to the for publication in some kind of journals. They'll sell you an exchange and give you the reference. This is the research papers I am submitting for journal for publication, already has been presented in the international conference just organized by. So on the basis of that, there is a good impact that the research paper is already being presented in international conference in IIM. So it will be a greater weightage for getting just published on research papers on journals. Okay. So guys, so far any questions, please, so that I can just move next to how to write research paper. What is the procedure for writing research paper? नेहा अभी भी वॉइस ब्रेक हो रही है कि अभी मेरे ख्याल से the quality is much better. Can't see the screen. Which screen you're not able to see? बीच बीच में हो रहा है, but overall I think it has improved now. सर क्वेश्चन, हाँ हाँ सर आ रही है आवाज अपने को,
We are getting your Any point. question, guys? Please ask me so that I can just share how to write research paper and all, little Sir, bit ये on. question है रोहित चौहान से. He is asking any conferences that a beginner should choose. Yeah, but the main thing is that there is no beginner at all when you are going to attend an international conference on such a platform like IITs and IIM or NIT. We always a beginner. We always a beginner. एंड जो वहां पे डेलीगेट्स होते हैं वो इतना अच्छे से आपको ट्रीट करेंगे कि यू विल फील लाइक कि हम हेवन में आ चुके हैं. दे विल जस्ट ट्रीट यू इन सच ए वे दैट दे विल शेयर देयर एक्सपीरियंसेस. वो बताएंगे आपको आपने ये कॉन्फ्रेंस स्टार्ट की है, आप इसमें ये भी कर सकते हो, आप इस एरिया पे रिसर्च कर सकते हो. एंड दे आफ्टर अलोंग विद दैट दे विल शेयर देयर नॉलेज एज वेल. और वो आपको बताएंगे कि आप हम हमारे साथ टच में रहो, इसके बाद हम आपको नए रिसर्च टॉपिक्स में करेंगे, हम साथ में कर सकते हैं. तो फ्रॉम देयर यू कैन गेट ए प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन स्टैंड अपॉन. बहुत सारे टॉपिक्स आपको मिलेंगे. अप्रोक्सीमेटली 200-300 डेलीगेट्स होते हैं. दे आर प्रेजेंटिंग देयर रिसर्च पेपर्स. You have to just listen with them. You need to know कि ये जो experienced faculty members हैं, experienced researchers हैं, जो delegates हैं, वो वहाँ पे आने के बाद वो कैसे रिसर्च को प्रेजेंट कर रहे हैं, हाउ दे वर्क, विच काइंड ऑफ जस्ट थीसिस दे अप्लाइड ऑन दैट, उन्होंने क्या उसमें अप्लाई किया है, कैलकुलेशन कैसे किया है, क्या मेथोडोलॉजी है. once you attend you will know each and everything inside information of the conferences or seminars, right? Okay sir. अच्छा सर, एक और क्वेश्चन है रोहित का ही. He is asking Yes. that can you please explain the difference between conferences and journal as far as publication Okay. is concerned. Okay, but Rohit, for this thing I'm just adding, when you are writing your research papers, so it must be presented in among the delegates, right? So when you presenting your research papers, so earlier stage we sometimes we need not know कि हमारी research how it is going to impact that particular way. लाइक हमने कोई रिसर्च पेपर लिखी है, अब उसका हो सकता है उतना इम्पैक्ट ना हो, ब्रॉड इम्पैक्ट ना हो जो हमने रिसर्च की है, या फिर वो रिसर्च पहले ही हो चुकी है, उसमें कुछ ऐड ऑन नहीं किया हो, या हो सकता है कि जो हमने मेथोडोलॉजी यूज की है उस मेथोडोलॉजी से हम पर्टिकुलर को नहीं करते हैं. तो कॉन्फ्रेंसेस में जो पेपर आप प्रेजेंट करते हैं वहां पे आपका पेपर जो क्लियर होता है, एंड आफ्टर दैट वहां पे जो चीजें आपका सेट ऑर्डर, so you can say that all the conference paper may not be just published in journals, but yes, यदि आपका कॉन्फ्रेंस में रिसर्च पेपर्स प्रेजेंट हो गया है तो देयर इज ए लॉट ऑफ चांसेस कि थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करने के बाद वो जर्नल्स में पब्लिश हो सकते हैं. So conference are the one step ahead of the journals. Paper presented in conferences, published in journals. That's very helpful, sir. Okay, Rohit. Any more question, or may I just move to the next topic? Yes, sir. Abhi sir, Jaspreet has a question. If I have completed the research for a particular topic, but I'm not able to publish it, so I have to take data for same thing again and go with that data taken previously. It's not very clear. Jaspreet, क्या बोल रहे हैं? Yeah, Jaspreet, if I'm not wrong, you are saying that already you have completed a particular research topic, वो publish नहीं हुआ, अब आपको again करना है तो फिर से वो data लेना पड़ेगा या फिर आपको नए data पे काम करना पड़ेगा. तो Jaspreet, when you are writing a research paper, हमें सबसे important ये जानना होता है कि हमने जो whatever work we did, either वो पहले किसी और वे से complete हो चुका है या complete नहीं हुआ है. If it is already being completed, so we need to know, we need to collect the data again, right? And if it is not already being published, definitely you can use the previous one data. Recently I'm just telling you, 15 days before I got a mail from one of some Chennai guy. He wanted to use my research paper, he wanted to use my data, so he wanted to just ask my permission. Sir, I'm just going to research on energy sector, so I want to use your project data that you have worked on IIT Delhi. सो डेफिनेटली जो आपने डेटा कलेक्ट किया है वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन यूटिलाइज इट अप टू द लेवल तक. ओके जसप्रीत? ओके सर, Shreya Shubha has a doubt. Some journal has less impact factor than conference. Then for which one should we go?
Shreya, for that I would like to advise you first go the conferences, because if you are going to attend the conference, you get to know what is going on what is going on the research papers, and after that generals, how which kind of papers are just accepted by the generals. क्योंकि जब एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है तो उनमें जो सेलेक्टेड पेपर्स होते हैं, लाइक वाइज 20% of that particular paper presented in conferences, they are already being published. वहां से वो खुद ही वहां से पब्लिकेशन के लिए वो भेजते हैं. एंड अलोंग विद दैट हर एक कॉन्फ्रेंस का एक कॉन्फ्रेंस की पब्लिकेशंस होती है. इस कॉन्फ्रेंस में जो पब्लिकेशंस होती है उसका भी एक ISIN नंबर होता है और वो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड होती है. तो एटलीस्ट आपका रिसर्च पेपर पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस के बुकलेट आफ्टर दैट. सर लास्ट लाइन ब्रेकअप हो रहा था वॉइस, लास्ट वाली लाइन फिर से बोलिए, क्या बोला आपने अभी? हेलो सर, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो रिसर्च पेपर्स ये पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट हो जाता है तो अप्रोक्सीमेटली 25 to 30% ऑफ पेपर्स जो कॉन्फ्रेंस की जो वहाँ पे डेलीगेट कमेटी होती है, एवरी कॉन्फ्रेंस हैव सम कमेटी हु इज जस्ट रिव्यूइंग द रिसर्च पेपर व्हाइल यू आर प्रेजेंटिंग. लाइकवाइज आई एम प्रेजेंटिंग माय रिसर्च पेपर, सो वहाँ पे जो कमेटी होती है, they are just trying to find it out, topics, research gap, methodology, then conclusions, and after that the methods that already I have utilized. On the basis of that वो पहले ही select कर लेते हैं for presenting the paper on journals. So it's better कि आप कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट करेंगे तो हो सकता है कि आपका पेपर वहीं की कॉन्फ्रेंसेस के बाद जनरल में पब्लिकेशन के लिए चला जाए. और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में वो आपको अपडेट करेंगे कि ये पेपर आपका प्रेजेंटेशन वहाँ जनरल में पब्लिकेशन के लिए हम भेज रहे हैं. बेसिस दीज आर द फ्यू चेंजेस यू हैव टू डू. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करके उसको वहाँ पे पब्लिकेशंस के लिए भेज सकते हैं, आइदर ऑन this particular conference or on any kind of other journals that you wanted to go. Okay, great. So basically सर बोल रहे हैं कॉन्फ्रेंस में आपने डाल दिया तो उसका जर्नल में जाने के चांसेस ऑलरेडी इंक्रीज हो जाता है. हो सकता है उनकी खुद के जर्नल में चले जाए, नहीं तो अदरवाइज आगे भी आप डाल सकते हैं. And along with that वहाँ पे आफ्टर जस्ट प्रेजेंटिंग पेपर ना, यू नीड टू नो कि आपको वहाँ पे क्या लिमिटेशंस है, आपने रिसर्च सही किया है नहीं किया है. एंड वहाँ पे जब 5-10 मिनट्स का आपके साथ क्वेश्चन आयर होता है, 1-to-1 क्वेश्चंस होता है, तो दे विल आस्क यू अ लॉट ऑफ थिंग्स. So 200 people are there, and after that they will ask questions one by one कि आपने ये hypothesis क्यों यूज नहीं किया है, आपने ये क्वेश्चनर में ये ऐड किया था या नहीं किया था, हाउ मेनी पॉपुलेस यू जस्ट कवर्ड, आपने कितने लोगों से डेटा लिया था, आपका उसमें इम्पैक्ट कितना रहा है. तो आफ्टर दैट यू नीड टू नो कि इसमें ये सारी चीजें भी होती हैं रिसर्च पेपर में जो मैंने अभी तक इंक्लूड नहीं की है. सो यू कैन जस्ट ऐड ऑन दिस थिंग ऑन लेटर डेट. सर एक और क्वेश्चन है उमंग से कि आर रिव्यू पेपर पब्लिकेशंस ऑफ एनी इंपॉर्टेंस और ओनली रिसर्च पेपर? बेसिकली उमंग रिव्यू पेपर्स पब्लिकेशंस, सो देयर इज नो एज सच लिमिटेशंस नहीं है, आप उनको भी पब्लिकेशंस में डाल सकते हैं. बट रिव्यू पेपर्स आर लिटिल बिट डिफिकल्ट टू गेट पब्लिश्ड, क्योंकि रिव्यू पेपर्स में ऐसा होता है कि कोई रिसर्च पर्टिकुलर होती नहीं है, सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन गैदर्ड होती है. जैसे इंटरनेट से आपने डाउनलोड कर लिया या फिर किसी से आपने किसी बुक से डाउनलोड कर लिया. सो देयर इज नो एनी टूल दैट कैन से दैट कि ये रिसर्च जो हुई है इसका कोई पर्टिकुलर इम्पैक्ट है और ये रिसर्च सही है जिसको हम फॉलो करने वाले हैं. बेसिकली रिसर्च में मेथोडोलॉजी होती है, ऑन विच काइंड ऑफ मेथोडोलॉजी यू आर यूजिंग. on the basis of data collected you have to utilize the methodology, and after that you get बीच में एक मेथोडोलॉजी होती है जिसे हम रिसर्च सिंथेसिस बोलते हैं, उसको करने के बाद ही आप कंक्लूजन पे आते हैं. तो वी नीड टू नो हम लोग मेथोडोलॉजी यूज कर रहे हैं रिव्यू पेपर्स में या नहीं. यदि रिव्यू पेपर्स में कोई मेथोडोलॉजी नहीं है तो आइदर इट कैन बी प्रेजेंटेड ऑन सेमिनार्स. यू कैन जस्ट टेक एन स्टार्ट ऑफ इट. अपने जो सेमिनार्स होते हैं कॉलेज, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेजेस में सेमिनार्स होते हैं, रिव्यू पेपर्स आप वहां पे पब्लिश कीजिए. आप जब वहां पे रिव्यू पेपर पब्लिश करेंगे तो यू गेट टू नो दैट कि हम अपने पेपर्स में और क्या ऐड ऑन करके इसको रिसर्च पेपर्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं. सो रिव्यू पेपर इज बेसिकली वन स्टेप बैकवर्ड ऑफ द रिसर्च पेपर्स. रिव्यू पेपर बनाइए देन गो टू द रिसर्च पेपर. Okay. Sir Garvit, I hope Umang your doubt got clear. Garvit has a question. So he says how to make sure that our research is unique, as there might be lots of papers that has already been published on the same topic. गर्वित फॉर दैट आई वांट टू शेयर. जब आप कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं, whenever you are submitting your research paper to the international conferences, there is a research committee who is just selecting your abstract. So basically when you are submitting or preparing your abstract, they just they will give you 1 or 2 months time for getting out of your result.
So after submitting your abstract, because at first level आप केवल अपना abstract ही submit करते हैं, they'll not ask for your complete paper, though they'll check it out कि जो आपने abstract submit किया है, it is just your unique work, it is your actual work, or it is a just copy paste kind of things. If your abstract is just a copy paste kind of thing, they'll reject your paper on conferences as well. So there is a screening procedure. So just submit your research paper on that particular topic and particular area. They'll screen you and they'll come back to you with your comments कि already इस type का research हो चुका है, the paper you have submitted already this. So you can get an idea of that. So yes, हमें we cannot get on particular, there is no particular way so that we can get या नहीं है. But once we submit a research paper, then definitely review committee will let us know कि हमारा publication का जो topic है इससे related relevant है और हम इसको आगे process कर सकते हैं. ठीक है सर. सर एक और क्वेश्चन है, इज इट, और कौशल भावसार का था, छूट गया था, इज इट ऑलवेज नेसेसरी टू टेक परमिशन फॉर यूजिंग अ रिसर्च पेपर और डेटा पब्लिश्ड बाय समवन एल्स? Yes, you're very right. You have to take the permission if you are using the data, right? Why someone has collected the data, but the main thing is that वो data आप use करने के लिए permission आप लेंगे यदि वो already published हो चुका है, already conferences में present हो चुका है. तो यदि वो already research papers इन दोनों stages से जा चुका है, then yes, आपको वहां से permission लेना पड़ेगा for using the data. अदरवाइज रिसर्च पेपर्स में आप उस डेटा को एज ए रेफरेंस यूज कर सकते हैं, बट उस डेटा को आप अपनी सिंथेसिस, अपनी एनालिसिस और अपनी पर्टिकुलर मेथोडोलॉजी के लिए आप यूज नहीं कर सकते. सो यू हैव टू कलेक्ट योर ओन डेटा ऑन द बेसिस ऑफ दैट प्रीवियस डेटा. आप उसको उसमें आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर में आप उसको पुट कर दीजिए या फिर अपने रेफरेंसेस में ऐड कर दीजिए कि ऑलरेडी आई हैव टेकन अ रेफरेंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पेपर एंड आफ्टर दैट आई हैव जस्ट कलेक्टेड माय डेटा. उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है सर, अभी तक इतने क्वेश्चंस थे. Okay, so buddy, in short, I am just moving ahead in the topic of research papers. So अभी हमने देखा कि हमने अपना टॉपिक already decided. तो टॉपिक डिसाइड करने के लिए और रिसर्च पेपर डिसाइड करने के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जो वी हैव टू फाइंड आउट रिसर्च गैप. हमें रिसर्च गैप, वी हैव टू फाइंड रिसर्च गैप. हमें रिसर्च गैप फाइंड आउट करना पड़ेगा दोनों के रिसर्च पेपर्स को पढ़ने के बाद. अब आइडिया हो गया हमारे पास, रिसर्च का हमने टॉपिक शॉर्टलिस्ट कर दिया. ऑन द बेसिस ऑफ दैट देन हम रिसर्च पेपर्स को लिखें कैसे. रिसर्च पेपर्स में फर्स्ट वी हैव टू राइट आवर एब्स्ट्रैक्ट. सबसे पहले हमें रिसर्च पेपर में एब्स्ट्रैक्ट लिखना होता है. एब्स्ट्रैक्ट इज जस्ट मिरर ऑफ आवर रिसर्च पेपर, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट में ही सारी चीजें इंक्लूडेड होती हैं. सब लिटिल बिट इंट्रोडक्शन, little bit methodology, little bit review of literature, little bit future scope, and after that conclusion. ये सारी चीजें आपके और important keywords, आपके रिसर्च पेपर्स में कीवर्ड्स इंक्लूडेड होने बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि आपने किन कीवर्ड्स को कंसंट्रेट करते हुए आपने अपना रिसर्च पेपर राइट किया है. ओके, सो एब्स्ट्रैक्ट जब आप लिखेंगे तो उसमें सारी चीजें रहेंगी. बेसिकली आपका एनालिसिस करने के बाद आपने माइंड मेकअप किया कि हमें इस टॉपिक पे रिसर्च करनी है. देन आफ्टर दैट यू हैव टू रीड डिफरेंट न्यूज़पेपर्स ऑन डिफरेंट जर्नल्स. आफ्टर दैट आपको एक वर्ड पेपर पे उन सब की फाइंडिंग्स लिखनी है. रिसर्च फाइंडिंग्स, जस्ट नोट इट डाउन, रिसर्च फाइंडिंग्स ऑफ दैट पर्टिकुलर पेपर्स. पूरा का पूरा हमें पेपर लिखने की जरूरत नहीं है, ना ही पूरा पेपर हमें मगअप करने की जरूरत है. वी हैव टू जस्ट फाइंड आउट रिसर्च फाइंडिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर रिसर्च पेपर, कि इस रिसर्च पेपर में उन्होंने क्या फाइंडिंग की है. एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ. अर्लियर मैंने एक रिसर्च पेपर लिखा था, क्रिटिकल रिव्यू ऑफ एग्जामिनेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स इन इंडिया. तो बेसिकली क्या था कि आई जस्ट गॉन थ्रू ए रिसर्च पेपर्स की यूएसए और डिफरेंट कंट्रीज में जो उनके कॉलेजेस और एग्जाम रिलेटेड प्रॉब्लम्स थे, तो उन्होंने रिसर्च पेपर लिखा था कि क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस हो रही है. तो देन उसी कंटेक्स्ट में मैंने जो हमारे इंडिया में जो रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, लाइक वाइज जो इंदौर में है, ग्वालियर में है, भोपाल में है, तो उन्हें क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और उनको क्या क्या डिफिकल्टीज रहती हैं ड्यूरिंग द एकेडमिक सेशन एंड ऑल. तो उस पे मैंने एक रिसर्च पेपर लिखा था और वो पब्लिश भी हुआ था. एंड आफ्टर दैट वो हमारा जो यूजीसी की सर्विस कमेटी है वहां पे भी एक्सेप्ट किया हुआ था उनकी फाइंडिंग्स को, जो हमारी फाइंडिंग्स थी. तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप वो रिसर्च पेपर्स को अपने कॉन्टेक्स्ट में भी यूज कर सकते हैं और अपने कॉन्टेक्स्ट में भी उसको राइट कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम उसको पढ़ेंगे रिसर्च पेपर्स. और गाइस,
मेक श्योर जब भी आप रिसर्च पेपर का टॉपिक चूज करें, ऐसा टॉपिक चूज करें कि यू कैन कंप्लीट इट। ऐसा नहीं कि आपने ऐसा रिसर्च पेपर कंप्लीट कर लिया जिसमें बहुत सारा रिसर्च और सिंथेसिस की हमको जरूरत है, क्योंकि हम पीएचडी नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट डूइंग ए पीएचडी ऑन दैट। ओके, तो यदि हम पीएचडी कर रहे होते तो हमें उसके लिए पीएचडी का थीसिस बनाना पड़ता है। तो ऑन दैट पार्ट हमें क्या होता है कि 6 मंथ्स, 1 ईयर, 2 ईयर डेटा कलेक्शन के लिए मिलता है, ठीक है ना। देयर इज ए कंप्लीट 1 ईयर फॉर कलेक्टिंग योर डेटा, प्राइमरी डेटा। और in the your engineering colleges, or like you are going to appear for your MS program in next 6 months or 1 year, after 1 year, so हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इसको फाइंड आउट कर सकें। तो ट्राई टू जस्ट गेट द टॉपिक who one can complete on the basis of questionnaire। आप एक क्वेश्चनेयर देख लो, क्वेश्चनेयर बना लो। आप क्वेश्चनेयर में अप्रोक्सीमेटली 20, 25, 30, 40 क्वेश्चंस होते हैं। आप गूगल की स्प्रेडशीट आप यूज कर लो और उसको अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स वाले लोग हैं, या फिर बाय यूनिकली कि आप उसमें 100 प्रिंट आउट्स निकाल लो। लाइकवाइज आप किसी रेंडमली आप करना चाहते हो तो गो टू द मार्केट और रेंडमली उनसे रिस्पॉन्सेस फिल करा के उसका पाई चार्ट बना के, पाई चार्ट बनाने के बाद और उसका एक कंक्लूजन आप शो कर सकते हैं जिस एरिया ऑफ फील्ड में आप काम करना चाहते हैं, ठीक है। सो एब्स्ट्रैक्ट के बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि आप वो टॉपिक वही चूज करेंगे जो आप अपने एरिया में, आप अपनी रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट में आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। जो टॉपिक आप क्वेश्चनर बेसिस पे कंप्लीट कर सकते हैं वो आप टॉपिक चूज करेंगे तो इट्स बेटर कि वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा और बहुत ज्यादा आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। और बहुत ज्यादा जब आप जनरल में पेपर भेजेंगे तो दिल आस्क कि आप इतना सारा डेटा कहाँ से मिला है, आपने कौन सा प्राइमरी डेटा सोर्स यूज किया है, कौन सा सेकेंडरी डेटा सोर्स यूज किया है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपके पास आंसर्स रेडी रहेंगे कि वी हैव प्रिपेयर्ड हमारा क्वेश्चनर्स एंड आफ्टर दैट वी हैव जस्ट कलेक्टेड आवर क्वेश्चनर डेटा, और उसके बाद हमने रिसर्च और सिंथेसिस किया है, राइट गाइस। सो ये दो चीजें हो गई हमारा रिसर्च पेपर लिखने के बाद। देन हमारा ऐसे अर्लियर स्लाइड्स में जो आपने देखा था इंट्रोडक्शन होता है। इंट्रोडक्शन इज बेसिकली जो हमारा पार्ट होता है, इसमें यू जस्ट स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, राइट वाइज यू आर जस्ट गोइंग टू राइट ए पेपर ऑन लाइक कंप्यूटर साइंस। अब कंप्यूटर साइंस में बहुत सारी नेटवर्किंग, यू आर जस्ट स्टार्टेड राइटिंग ऑन नेटवर्किंग। अब नेटवर्किंग में आपको बहुत सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी। नेटवर्किंग में आपको उसका बैकग्राउंड क्या है, नेटवर्किंग में आप अभी तक कितना टोटल रिसर्च हो चुका है, एंड आफ्टर दैट रिव्यू ऑफ लिटरेचर। रिव्यू ऑफ लिटरेचर वो पार्ट आपका उसका होता है रिसर्च पेपर्स का जिसका आप यूज करते हैं। बेसिकली समवन हैज ऑलरेडी रिटन की डायोड पे उन्होंने लिख दिया। अब डायोड उन्होंने जो यूज किए हैं वो आप रिसर्च को अपने में किसी ना किसी कॉन्टेक्स्ट तक यूज करना चाहते हो, ऑन नॉट इन ए डायरेक्ट वे बट इनडायरेक्ट वे, तो आपको रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखना पड़ेगा कि उसमें 5 रिव्यू ऑफ लिटरेचर, 10 रिव्यू ऑफ लिटरेचर की मेजरली किन लोगों ने ऑलरेडी आपके पर्टिकुलर टाइप पे काम किया है। सो दिस इज एन रिव्यू ऑफ लिटरेचर। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर करने के बाद आपको अपने रिसर्च पेपर्स में उनकी पूरे वर्क को, रिसर्च पेपर्स की फाइंडिंग्स को लिखना पड़ेगा ऑन ए पैराग्राफ। एक एक पैराग्राफ में अप्रोक्सीमेटली 8 to 10 या 5 एज पर योर लेंथ ऑफ योर पेपर यू हैव टू जस्ट राइट इट आउट। देन आफ्टर दैट इंट्रोडक्शन पार्ट, एब्स्ट्रैक्ट हमने लिख लिया, इंट्रोडक्शन लिख लिया। इंट्रोडक्शन के बाद हमको चूज करनी है मेथोडोलॉजी। अब मेथोडोलॉजी तो रिसर्च में बहुत सारी होती है। पाई इट स्टार्ट्स फ्रॉम चार्टिंग, आप उसमें चार्ट बना सकते हैं, पाई चार्ट हो गया, डबल पाई वो बार ग्राफ्स हो गए। ओके, सो इनको आप मेथोडोलॉजी को यूज करने के बाद उसमें हाइपोथेसिस भी बहुत सारा यूज होता है। तो बेसिकली आप कौन सी मेथोडोलॉजी आप यूज करना चाहते हैं अपने रिसर्च के टॉपिक को निकालने के लिए, तो आप वहां पे मेथोडोलॉजी आप उसको यूज करेंगे। अब इसके बाद आता है एनालिसिस ऑफ इंटरप्रिटेशन। अब इंटरप्रिटेशन में इंपॉर्टेंट चीजें रहती है कि आप क्या इसमें कंक्लूजन देना चाहते हैं, आपके रिसर्च पेपर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। लाइकवाइज सिंपल से एग्जांपल बताता हूं, यदि आपने कहा कि इंदौर में हमें ये सर्वे करना है कि कितने % लोग हैं यहाँ पे पोहा जलेबी खाना पसंद करते, okay, so you have to conduct a research how many percentage of total population in Indore is looking just want to have poha or jalebi in the early morning। अब इस रिसर्च में बहुत सारे टॉपिक्स हो सकते हैं, अर्ली मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, या आप उसमें जेंडर कर दो, मेल कर दो, फीमेल कर दो, या एज ग्रुप डाल दो, एज ग्रुप ऑफ यू कैन से दैट 15 years to 25, 25 to 30, या फिर ऐसा करके एज ग्रुप में आप रिसर्च पेपर बना सकते हैं। तो इट इज अप टू यू कि आप उसको एनालिसिस क्या प्रेजेंट करना चाहते हो ऑन द यूजिंग ऑफ मेथोडोलॉजी। यू कैन जस्ट कन्फर द पर्टिकुलर रिजल्ट ऑन दैट। देन आफ्टर दैट जो आपका सिंथेसिस रहेगा, जो आपका एनालिसिस रहेगा, जो आपका इंटरप्रिटेशन रहेगा, ऑन द बेसिस ऑफ योर आपका कंक्लूजन रहेगा। अलोंग विद द कंक्लूजन आप इसमें फ्यूचर स्कोप भी आपको ऐड करना पड़ेगा कि इसमें फ्यूचर का स्कोप क्या है। बेसिकली आपने जो काम किया है, हाउ इट्स गोइंग टू हेल्प इन कमिंग फ्यूचर।
कि इसमें हमें कैसा कर सकते हैं। लाइकवाइज हमने यदि रिसर्च पेपर प्रिपेयर किया कि यहाँ पे पोहा और जलेबी कितने लोगों को पसंद है इंडिया में, सो द पर्सन हु इज जस्ट गोइंग टू ओपन ए रेस्टोरेंट इन इंदौर, उसको पता होगा कि यहाँ की पॉपुलेशन का एज ग्रुप यदि हम 25 ईयर्स टू 30 ईयर्स लेते हैं, इतने लोगों को यहाँ पे पोहा जलेबी खाना अर्ली मॉर्निंग पसंद है, तो वो आपका रिसर्च पेपर उठाएगा, ही विल जस्ट गो थ्रू योर रिसर्च पेपर। रेस्टोरेंट का ओनर आपको पढ़ेगा और देखेगा कि हाँ ये ऑलरेडी इस पे काम हो चुका है, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो लोकेशन, लोकेलिटी और उसके बाद आपका उसका जो मेन्यू रहेगा वो चूज करने के बाद अपने बिजनेस को स्टार्ट करेगा। द सेम वे द रिसर्च पेपर्स आर यूजिंग बाय इंडस्ट्रियलिस्ट फॉर सेटिंग एनी काइंड ऑफ इंडस्ट्री और जस्ट डूइंग एनी काइंड ऑफ रिसर्च। जो आपका मेडिकेशन में जो रिसर्च होता है, जो आपका एरोस्पेस में जो रिसर्च होता है, सो रिसर्च पेपर्स आर गोइंग दैट वे, राइट। तो देन ये चीज हो गया। एंड आफ्टर दैट इसमें नेक्स्ट चीज होती है हमारा रेफरेंसेस। हमें रेफरेंसेस इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसको हम बिब्लियोग्राफी और रेफरेंसेस बोलते हैं। गाइस मेक श्योर यदि आपने किसी भी रिसर्च पेपर या जर्नल से इवन सिंगल लाइन भी यूज की है, सो जस्ट पुट इट ऑन बिब्लियोग्राफी पार्ट एंड रेफरेंसेस पार्ट, क्योंकि यदि आपने बिब्लियोग्राफी और रेफरेंसेस पार्ट में उसको ऐड कर दिया तो वो प्लेजरिज्म नहीं होगा। वो यदि आपने उसको ऐड वहां पे नहीं किया है तो पर्टिकुलर पर्सन कैन क्लेम दैट यू हैव जस्ट प्लेजराइज्ड दैट पर्टिकुलर पेपर। सो मेक श्योर जो भी आप रेफरेंसेस यूज करते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप किसी से आइडिया लेते हैं। सपोज मान के चलिए आपने ए पेपर रिव्यू किया, उससे आफ्टर दैट जस्ट गोइंग थ्रू दैट पर्टिकुलर रिसर्च पेपर्स आपको आइडिया आया कि आप उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, तो पहले तो आप उसको लिखना पड़ेगा, रिव्यू ऑफ लिटरेचर में लिखना पड़ेगा। देन आफ्टर दैट रिव्यू ऑफ लिटरेचर के बाद उससे जो रिलेटेड दूसरे पेपर्स है, जो सब पेपर्स हैं, जो डिफरेंट दूसरे पेपर्स और हैं, बिब्लियोग्राफी और रेफरेंसेस में लिखना पड़ेगा। देन आफ्टर दैट कंक्लूजन आता है, और कंक्लूजन में वही पूरी सारी चीजें होंगी जो एब्स्ट्रैक्ट में स्टार्ट हुई थी। सो जैसा आपने एब्स्ट्रैक्ट लिखा है वैसा ही आपको कंक्लूजन लिखना पड़ेगा, स्टार्ट टू एंड। बहुत सारे इसमें जॉर्गन्स नहीं लिखना है, बहुत सारी इरिलेवेंट इंफॉर्मेशन नहीं लिखनी है, सिर्फ 2 to 3 लाइंस आपको लिखना है सिंस स्टार्टिंग टू एंड। लाइक हमने कौन सी मेथोडोलॉजी यूज की, मेथोडोलॉजी यूज करने के बाद ये हमारा रिसर्च सिंथेसिस रहा, देन आफ्टर दैट दिस इज आवर कंक्लूजन, एंड आफ्टर दैट होल फ्यूचर स्कोप क्या हो सकता है हमारा, राइट। ये सारी चीजें यूज करने के बाद हम इसको आगे कंप्लीट करेंगे। अब ये तो हो गया हमारा रिसर्च पेपर राइट करने का तरीका। नाउ द थिंग इज दैट इसका फॉर्मेट होता है कुछ पर्टिकुलर। यस, हर एक रिसर्च पेपर्स का बीइंग इट्स गोइंग टू प्रेजेंट इन कॉन्फ्रेंसेस और जर्नल्स, देयर इज ए जस्ट पर्टिकुलर फॉर्मेट। जो रिसर्च पेपर्स होते हैं फॉर्मेट लिखने का पर्टिकुलर फॉन्ट होता है, पर्टिकुलर उसका लिखने का स्टाइल होता है। लाइक स्टाइल्स में हम कह सकते हैं एपीए स्टाइल होती है, एमएलए स्टाइल होती है, हार्वर्ड स्टाइल होता है। सो आप जब भी आप रिसर्च पेपर लिखे तो उसके पहले जस्ट गो थ्रू द राइटिंग स्टाइल। नोट कर लें आप, एपीए होता है, लाइक आई एम जस्ट राइटिंग ओवर हियर एपीए राइटिंग स्टाइल। ओके, सो दिस इज द एपीए फॉर्मेटिंग एंड स्टाइल गाइड। सो यदि हमें आपको पता होगा कि एपीए राइटिंग स्टाइल क्या होता है, और यदि कॉन्फ्रेंस और जनरल में दे आर लुकिंग फॉर द पेपर हुज पेपर्स आर रिटन ऑन एपीए स्टाइल, तो आपको एपीए फॉर्मेटिंग गाइड जो होती है और राइटिंग स्टाइल जो होती है उसके अकॉर्डिंग आपको अपने पेपर को प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो जस्ट गॉन थ्रू these things, APA, MLA, Harvard, there are a lot of more writing styles. So basic जो तीन ही होती हैं, APA है और MLA है और Harvard है। Most of the 80% work will be done on APA और MLA स्टाइल में। तो आप ये दोनों पे काम करके अपना पूरा एनालिसिस कर सकते हैं। So guys, any question so far? Guys, any questions? लास्ट जो कुछ डिस्कशन सर ने किया एपीए गाइडलाइन और कुछ और चीजों पे, कोई क्वेश्चंस हो तो टाइप कीजिए। नहीं सर, आगे बढ़ सकते हैं, यू कैन मूव अहेड। ओके, सो गाइस रिसर्च पेपर्स में मोस्ट ऑफ चीजें ऑलरेडी हमने कवर कर ली है। द रिसर्च पेपर्स में दूसरी इंपॉर्टेंट चीज रहती है जो वर्ड लिमिट। हमें हमेशा रिसर्च पेपर्स में वी हैव टू जस्ट कंसाइज वे में वर्ड लिमिट में हमको पेपर को पब्लिश करना होता है, क्योंकि यदि आपने बहुत लिंदी और बहुत बल्कि पेपर्स लिखा है सो इट विल नॉट बी एक्सेप्टेड इन एनी जर्नल्स, क्योंकि जर्नल्स में बेसिकली क्या होता है, वहां पे बहुत सारा लिमिटेशंस होता है। सो यू हैव टू वर्क ऑन दैट। हमारा जो रिसर्च पेपर है वो पर्टिकुलर वर्ड लिमिट में ही होना चाहिए। एंड अलोंग विद दैट
जनरल्स में यदि आप पेपर भेज रहे हैं, इंटरनेशनल पेपर भेज रहे हैं, मेक श्योर पेपर होना चाहिए। ठीक है, हमने उसमें पैसिव वॉइस में यूज किया है तो दैट मे बी रिजेक्टेड इन कॉन्फ्रेंसेज और जनरल्स। तो वो राइटिंग स्टाइल है, along with that इन एक्टिव वॉइस में लिखा होना चाहिए rather right guys? सर एक क्वेश्चन है, there's a question from Muskan Arora. So how many pages या word limit is suggested? बेसिकली इट्स ऑल अबाउट द रिसर्च पेपर्स। जब भी आप जर्नल में, जिसके भी जर्नल में आप पेपर भेजना चाहते हैं, उनका ऑलरेडी, सपोज यू आर जस्ट शॉर्ट लिस्टेड स्प्रिंजर, इफ यू आर शॉर्ट लिस्टेड साइंस डायरेक्ट पे आप जब जाएंगे तो यू विल गेट टू नो कि उनका जो पेपर का लेंथ है, जो पेपर का पेजेस है, वो उसमें कितने पेजेस या वर्ड्स में एक्सेप्ट करते हैं। सो ऑलरेडी इज गिवन देयर। जब इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज में आप पेपर भेजेंगे तो ऑलरेडी उनके पास होता है कि यू हैव टू सेंड योर एब्स्ट्रैक्ट in only 100 words. After that you have to send your complete paper on 500 या 1000 words. तो आपका उसमें ऑलरेडी मेंशन, क्लियरली मेंशन होता है राइटिंग गाइडलाइंस। सो सर वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। हेलो, हाँ सर, वॉइस ब्रेक हो रही थी लास्ट सेंटेंस। अभी ब्रेक हो रही सर? अभी ठीक आ रहा है, बीच में से चला गया। सर बेसिकली आई सेड कि जो भी जहाँ पे बच्चे भेजेंगे अपना रिसर्च पेपर्स, उनका ऑलरेडी उसका गाइडलाइंस होता है कितने पेज में उन्हें लिखना है और कौन सी राइटिंग स्टाइल में लिखना है, क्या फॉन्ट लिखना है, क्या मार्जिन लिखना है। सो बेसिकली फॉन्ट, मार्जिन और ये कौन सा हमको वर्ड यूज करना है, उस अकॉर्डिंग वही कहलाती है एपी और एमएलए और गाइडलाइंस होती है राइटिंग की। तो वो वहाँ पे क्लियरली मेंशन होता है सर। ओके sir, again Umang has a question regarding, is there any way for converting from one writing style to the other through any software? नोबडी, इसमें कोई सॉफ्टवेयर से हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो गाइडलाइंस होती है उसमें ये होता है कि मार्जिन कितना हमको छोड़ना है, हमें जो पैराग्राफ्स हैं वो पैराग्राफ्स हमको इंटेंड करके लिखने हैं या डायरेक्ट पैराग्राफ लिखने हैं, या पैराग्राफ के बीच में हमें स्पेस कितना लिखना है, या फिर हमें जो साइटेशन, जैसे हम आपने रिसर्च पेपर लिखा, रिसर्च पेपर्स का फॉर्मेट ये होता है, पहले टॉपिक लिखेंगे, फिर उसके बाद उसका राइटर का नाम लिखेंगे, राइटर के नेम के बाद उसका मेल आईडी लिखेंगे, फिर उसके बाद उसका मोबाइल नंबर लिखेंगे। तो जो लिखने का स्टाइल होता है पर्टिकुलर, ये एपी और एमएलए आपको समझ के लिखना पड़ेगा, इसका कोई सॉफ्टवेयर नहीं है उसको हम चेंज कर सकते हैं। उमंग, हाउएवर आपने लेटेक्स का नाम सुना होगा, लेटेक्स इज अ डॉक्यूमेंट मार्कअप लैंग्वेज। तो वहां पे आप डिफाइन कर सकते हो कि एपीए के अगर आपको मार्कअप्स मिल जाए तो प्रॉब्ली ट्राई कर सकते हो। जस्ट माय गेस, ऐसा कोई सॉफ्टवेयर तो नहीं मिलेगा, पर यू कैन ट्राई लेटेक्स। एपीए और लेटेक्स ट्राई करोगे तो कुछ शायद उसके आपको मिल जाए प्री फॉर्मेटेड, आपको अगर कुछ मिल जाए तो वो देख सकते हो आप, है ना। बाकी आई डोंट थिंक देयर इज एनी सॉफ्टवेयर। Guys, ask me any question that कुछ यदि लीव हो गया है या कुछ ऐसा आपके टॉपिक का आप रिलेवेंट आपको लगता है कि that can help you in writing your research papers, so please ask and I am just sharing my experience. रिसर्च पेपर्स ऐसी चीज होती है कि आप एक रिसर्च पेपर कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट करते हो और आपको 250 200 and 250 रिसर्च टॉपिक्स में आपको आइडिया लगता है कि दुनिया में क्या हो रहा है। You wrote only one research paper and get to know कि इस पर्टिकुलर इसमें 250 300 डेलीगेट्स, वो जो पक्के बालों वाले जो डेलीगेट्स वहां पे आके जाते हैं, उस आफ्टर दैट इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस टू जस्ट लिसन टू देम। सो जस्ट ट्राई टू जस्ट प्रेजेंट योर रिसर्च पेपर्स इन आईआईटीज, आईआईएम्स। ये मेरा पर्टिकुलर एक्सपीरियंस रहा है। कॉलेज में जब मैं था वहां से मुझे रिसर्च पेपर्स लिखता था, प्रेजेंट करता था। इवन दे आर जस्ट शेयरिंग माय टिकट्स एज वेल। टिकट्स मुझे वहां से मिलती थी, लिविंग का, बोर्डिंग, लॉजिंग, एंड आफ्टर दैट जिस पर्टिकुलर लोकेशन में आपकी कॉन्फ्रेंस होगी, लाइक वाइज आईआईटी रुड़की में यदि कॉन्फ्रेंस है आपकी, तो वहां से डेलीगेट्स जो भी बाहर के होते हैं, वो वन डे का टूर होता है। वो पूरे वन डे में आपको यहाँ पे सभी जगह आसपास के एरिया में आपको लेके जाते हैं फॉर घूमने फिरने के पर्पज से। तो दिस पर्पज कैन ऑल्सो बी सफाइस। सो सिंपल सा है, घूमना फिरना फ्री में, रिसर्च पेपर्स लिख लिया, सर्टिफिकेट मिल गया और ये सारी चीजें हो गई उसके साथ, राइट? Guys, any questions? कुछ और क्वेश्चंस हो, इफ यू गाइस हैव एनी अदर क्वेश्चंस प्लीज डोंट हेसिटेट। हम लोग वो जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है उसमें हम लोग रहेंगे, अरुण सर और मैं। कुछ भी आपको आगे डाउट्स हो तो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू अस, राइट। और अभी अगर कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं, अच्छा एक क्वेश्चन आया, वेयर अ फार्मेसी स्टूडेंट कैन रिप्रेजेंट द पेपर एनी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट। तो अगेन जैसे सर ने बोला, allconferences.com पे जाके आप फार्मा से रिलेटेड भी निकाल सकते हैं कॉन्फ्रेंसेस,
है ना. बाकी अगर आप देखेंगे तो मैं बाद में आपको कुछ हेल्प कर सकता हूँ, है ना, बाद में सर्च आउट कर सकते हैं हम लोग. Free, see, all the reputed institutes are free, doing free publication only. जो अपने पेड वाले होते हैं सब लोकल होते हैं जो चार्ज करते हैं अपने को. तो मुस्कान, इफ यू आर टारगेटिंग एनी टॉप जर्नल या टॉप पब्लिकेशन, दे वोंट चार्ज यू एनीथिंग. अगर चार्ज करेंगे तो बहुत नॉमिनल अमाउंट चार्ज करेंगे, है ना. पेड वाले जो पेड जो शेडी जर्नल्स होते हैं ना, वही ज्यादा चार्ज करते हैं. इफ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड जर्नल, ऑब्वियसली दैट विल बी फ्री. एंड गाइस, जब भी आप रिसर्च पेपर्स फाइंड आउट करेंगे, सर्च करेंगे, देन आप यहाँ पे जैसा मैंने बताया था, टॉपिक्स डालने के बाद डोंट फॉरगेट टू पुट द प्लस साइन ओवर दैट. लाइकवाइज आप कोई भी एक टॉपिक ले लीजिए, सपोज मान के चलते हैं डेटा लॉगर पे हम काम करते हैं, ठीक है. यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द डेटा लॉगर. ऑलरेडी आई वर्कड ऑन डेटा लॉगर सिस्टम व्हेन आई वाज इन IIT. सो डेटा लॉगर आपने सपोज सर्च किया, क्या सिस्टम होता है, कैसे काम करता है, तो इसके बाद आप प्लस साइन लगाइए और PDF करने के बाद आप इसको सर्च कीजिए और ओनली रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन आएगी आपके पास जो आपसे रिलेटेड है. यदि आपने PDF नहीं किया तो बहुत सारी इरिलेवेंट इन्फॉर्मेशन आएगी और उसमें अपना टाइम वेस्ट होगा आपका. एंड अलोंग विद दैट, जैसा सर ने भी आपको एडवाइस किया था, आप इसमें स्कॉलर साइट पे भी आप सर्च करेंगे, जो गूगल स्कॉलर होती है, वो बेसिकली मेंट फॉर द रिसर्च पर्पस. तो यहाँ पे जो आप स्कॉलर पे जाएंगे, गूगल स्कॉलर जो साइट है, दिस वन इज साइट. सो आप यहाँ पे आप जाने के बाद यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको रिसर्च पेपर्स या जर्नल्स ही आपके यहाँ पे मिलेंगे. सो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं, दिस इज द गूगल स्कॉलर. सो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं आर्टिकल्स. यू विल गेट टू नो द आर्टिकल्स, जो आर्टिकल्स आज अभी इसमें पर्टिकुलर टॉपिक्स में लिखे होंगे. Pragati is asking, is there any criteria to be selected for any conferences? Yes, Pragati, there is a selection criteria for by any conferences. So whenever you will see the conference, उसमें पूरी details होती है. You just download that particular information booklet. conferences में डली हुई होती है वेबसाइट्स में, कि आपको उसमें बेसिक क्या होता है, थीम्स होते हैं. कॉन्फ्रेंस की एक थीम होती है, थीम के बाद एक सब थीम होता है. तो उन दोनों थीम से रिलेटेड ही पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस में आप पेपर्स भेज सकते हैं ऑन पर्टिकुलर क्राइटेरिया. दैट इज द ओनली क्राइटेरिया. एज, आफ्टर दैट योर एकेडमिक क्वालिफिकेशन इज नॉट द एनी क्राइटेरिया. आप वहां पे, हम लोग जब पहला रिसर्च पेपर्स मैंने प्रेजेंट किया था, दैट आई वाज अ सेकंड ईयर स्टूडेंट, इंजीनियरिंग सेकंड ईयर स्टूडेंट था, तो मैंने वहां पे पेपर प्रेजेंट किया था और ऑलमोस्ट फिर तो आदत सी हो गई थी भेजने की. Okay, so you can send your research papers by any age and by any academic qualifications. और इसके लिए किसी गाइड की या किसी की जरूरत नहीं है कॉलेज में. यदि मिल जाता है, that is okay, it's helpful for you. और यदि इन केस वहाँ पे कोई गाइड्स अवेलेबल नहीं है तो संदीप सर इज देयर. आप संदीप सर से पूछ लेंगे तो संदीप सर इज एज वेल एज योर गाइड. वो आपको गाइड कर देंगे कैसे, हाउ टू राइट एंड बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या होती है. दिस इज द बेसिक रोल ऑफ योर मेंटर. तो आइदर इट बी इट्स कॉलेज के प्रोफेसर हो या संदीप सर हो. यदि कॉलेज के प्रोफेसर थोड़ा सा सोचते हैं कि हमने नहीं किया था इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो अभी बच्चे कैसे करने लगे. ओके. अच्छा, Jaspreet has a question, from which website we can download research paper. तो यार अपन गूगल स्कॉलर, जैसे मैंने मेंशन किया था, गूगल स्कॉलर जैसे आपने डाल रखा है scholar.google.com, यहाँ पे आप ढूंढ सकते हैं. Another good resource is basically you can go to arxiv, arxiv.org. That is also a good resource. उस पे अच्छे क्वालिटी पेपर्स हैं, साइंस, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स, फाइनेंस. इस पे भी चेक कीजिए आप. इस पे अपने स्टूडेंट्स ने इस साल सानिध्य, पूर्वा, इन लोगों ने पब्लिश किया है. दिस इज अ गुड रिसोर्स, पीयर टू पीयर ये है, और इस पे भी अच्छा पब्लिकेशन करते हैं बच्चे. जसप्रीत, आई एम एडिंग फ्यू थिंग. आप ये जो जर्नल्स है ना, साइंस डायरेक्ट है, स्प्रिंजर है, तो वहां पे जब आप पर्टिकुलर टॉपिक पे जब सर्च करेंगे ना, तो यू मे नॉट बी एबल टू डाउनलोड द होल पेपर, बट वहां पे एब्स्ट्रैक्ट का जो पार्ट होता है वो आप वहां पे पढ़ सकते हैं और वहां पे डाउनलोड कर सकते हैं. एटलीस्ट पूरा पेपर नहीं आप डाउनलोड कर सकते, बट फॉर द रेफरेंस ऑफ योर नॉलेज, फॉर द रेफरेंस ऑफ योर जस्ट फाइंडिंग आउट की क्या कितनी रिसर्च हो गई है या किस टॉपिक पे, you can download that particular abstract from IEEE, Springer, Science Direct, from these journal sites as well. Kaushal has a question: how to read a research paper while doing our research? Okay, Kaushal, for that first of all we need to know our abstract. Study करना है abstract का.
एब्स्ट्रैक्ट पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो एब्स्ट्रैक्ट है या जो रिसर्च पेपर है मेरी पर्टिकुलर स्टडी को पर्टेन करता है। दैट मीन्स जो मैं रिसर्च पेपर लिखने वाला हूँ, दिस रिसर्च पेपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंक्ड विद माय रिसर्च वर्क। यदि वो आपके किसी रिसर्च वर्क से लिंक करता है तो आप उसको पढ़िए। आफ्टर रीडिंग द रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट, आप वहां पे जाने के बाद उसकी मेथोडोलॉजी को आपको पढ़ना है कि उन्होंने कौन सा पर्टिकुलर टूल यूज किया है फॉर दैट पर्टिकुलर रिसर्च। एंड गाइस, वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड, सभी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है कि हम इसमें कौन सा टूल यूज करें और कैसे यूज करें, राइट ना। सो आप जब भी रिसर्च पेपर्स अपने टॉपिक से लिखिए तो आप ये देखिए कि इस टॉपिक से रिलेटेड यदि कोई दूसरा जर्नल था, दूसरा यदि कोई ऑथर था या राइटर था जिसने लिखा हुआ है रिसर्च पेपर, उस टूल को उसने कैसे यूज किया है और उसने कौन सा टूल यूज किया है, तो ऑन द सेम कंटेक्स्ट आप उसको रेफरेंस में लेके आप टूल को जज कर सकते हैं कि पर्टिकुलर रिसर्च पेपर हमें लिखने के लिए ये टूल यूज करना है, और इसके बाद हमारा जो सिंथेसिस बनाना है, जो हमारा कंक्लूजन है, जो हमारा बाकी की प्रोसीजर है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। सो प्रोसीजर फॉलो करने में कोई प्लेजरिज्म नहीं होता है। आप अपने टॉपिक से रिलेटेड अच्छे रिसर्च पेपर्स फाइंड आउट कर लीजिए और उन्होंने जो टूल यूज किया है, उन्होंने जो मेथोडोलॉजी यूज की है, जस्ट बेसिस ऑन दैट जस्ट डेवलप योर ओन एजेंडा और उसको आप रेफरेंस में रख के अपना काम कर सकते हैं। सो बेसिकली राइटिंग ए रिसर्च पेपर इज नॉट ए वेरी बिग थिंग यार, वो एक माइंडसेट होता है बस, और कुछ नहीं है। आप रिसर्च गैप फाइंड आउट करो, 4 से रिसर्च पेपर्स पढ़ो, रिसर्च गैप फाइंड आउट करो, उसको ग्लोबल कंटेक्स्ट को स्मॉल कंटेक्स्ट में लेके आओ, दैट्स इट। What separates a good quality research papers on a bad one? बेसिकली कुशल, जो रिसर्च पेपर्स की क्वालिटी होती है डिपेंड करता है कि जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है आपका। if your source of information is correct, you have just collected your source of information from legitimated sources, you have collected your information from by your own, likewise by questionnaires, by some data, by visiting industries on basis on your research topic। यदि आपका वर्क ओरिजिनल है, एक्चुअल है, दैट इज ए गुड क्वालिटी ऑफ रिसर्च पेपर। इट डजंट मेक एनी सेंस कि आपका बहुत बड़ा रिसर्च टॉपिक है, छोटा सा रिसर्च टॉपिक है। आइदर यू हैव जस्ट सेलेक्टेड स्मॉल रिसर्च टॉपिक बट यस यू वर्कड ऑन वेरी वेल, आपने पूरा डेटा कलेक्ट किया, आपने पूरी सारी चीजें आपने जेन्युइन तरीके से की है, देन इट विल गुड। अच्छा, we are overstretching our time. We'll take 3 more questions. The first one is already come. Devika, can you please elaborate how to find research gap? Yeah, Devika, for research gap finding, you have to find that particular, suppose मान के चलिए आपका कोई आपने टॉपिक लिया, उस टॉपिक पे आपने, एक सिंपल से एग्जांपल देता हूं कि एक लॉजिस्टिक एंड चेन सप्लाई मैनेजमेंट पे या एक रिसर्च पेपर्स हमने लिखना है। अब रिसर्च पेपर्स में हम देखेंगे कि पहले ग्लोबल कंटेक्स्ट में देखेंगे कि कितना रिसर्च पेपर लिखा हुआ है, फिर उसके बाद हम देखेंगे क्या इसको इंडिया के कंटेक्स्ट में लिखा हुआ है, यस इसमें भी लिखा हुआ है। अब इंडिया के कंटेक्स्ट के अलावा क्या उसने सारी इंडस्ट्रीज के लिए लिखा हुआ है, ओके सारी इंडस्ट्रीज के लिए लिखा हुआ है, तो फिर हम क्या करेंगे, सर्विस इंडस्ट्री ले लेंगे, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ले लेंगे, आईटी एंड सॉफ्टवेयर ले लेंगे, या फिर रिटेलर चेन ले लेंगे। तो हम ये फाइंड आउट करेंगे क्या रिटेलर चेन, सर्विस इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या एग्रीकल्चर फार्मिंग से रिलेटेड पे भी रिसर्च वर्क लिखा हुआ है। तो इसके बेसिस पे आपको उसमें शॉर्टलिस्ट करना पड़ेगा कि किस लेवल पे रिसर्च वर्क नहीं हुआ है, और जहां पे आपको लगे कि हाँ इसमें अब मान के चलते हैं कि सारा हो गया, अब लेकिन इंदौर पे तो रिसर्च वर्क नहीं लिखा हुआ होगा। अब हो सकता है आप इंदौर पे ले लो कि इंदौर पे जितने भी फूड चेन के रेस्टोरेंट्स हैं वो कौन सा लॉजिस्टिक यूज करते हैं, उनके लॉजिस्टिक पे आप एक मॉडल प्रिपेयर करो कि यदि ये मॉडल लॉजिस्टिक एंड चेन सप्लाई का इंदौर सिटी में हम यूज करते हैं, बाय द एनालिसिस ऑफ दीज रेस्टोरेंट्स आई फाइंड आउट दैट कि ये हमारा लॉजिस्टिक मॉडल है जो कि काफी अच्छा है और ये हम इसको फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। दैट विल इट विल बी ए गुड रिसर्च पेपर एंड this is the way this is the right way to find the research gap. Another question is Umang is asking again for a software which is available for plagiarism checking for research papers. Yes, Umang, there are a lot of softwares by just going online you can check plagiarism। आप गूगल में आप सर्च करेंगे, वहां पे बहुत सारे आपको अपलोड करना है अपने पेपर्स, वो चेक करके आपको बता देंगे। नॉर्मल इंटरनेट पे भी चेकिंग कर सकते हो उमंग, प्लेग टेल अपन करते ही हैं, तो आप अपना पेपर के कंटेंट डालेंगे अगर वहां पे गूगल में, है ना, नहीं तो कई सारे एसईओ रिलेटेड टूल्स होते हैं इंटरनेट पे, उस पे भी आप चेक कर सकते हो। आई एम प्रीटी श्योर it will find out if there are any part of the content in your research paper which is being plagiarized. ठीक है, great. We are taking one more question. Does anyone has one?
अदरवाइज भी डोंट पैनिक, वो व्हाट्सएप ग्रुप में अपन हैं, अरुण सर भी हैं, मैं भी हूँ, कोई ऐसा क्वेश्चन आ रहा है बाद में आपको स्ट्राइक हुआ कि यार ये हम पूछना भूल गए, यू कैन ऑलवेज आस्क अस, राइट, एंड we'll try our best to answer your queries. So if you have any question right now, it's fine. Otherwise, we would like to conclude this session. It was a good session, I think. We were able to answer a lot of questions related to paper journals and paper publication from students. We were able to give you a good starting, गुड स्टार्ट अपन दे पाए कि अपन कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं और क्या क्या चीजें कर सकते हैं. आई एम होपिंग दिस सेशन विल लीड टू अ लॉट ऑफ गुड क्वालिटी रिसर्च पेपर फ्रॉम आवर स्टूडेंट्स. एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, वी आर ऑलवेज देयर, राइट. हम लोग आपकी हेल्प और गाइडेंस में हैं. बिल्कुल माइक्रो मैनेजरियल लेवल पे तो नहीं कर पाएंगे कि सर ये पर्टिकुलर सप्लाई चेन का ये रिग्रेशन एनालिसिस में आपने को हेल्प करो, वो शायद नहीं कर पाएंगे. बट इन जनरल जो ब्रॉड लेवल के क्वेश्चंस हैं उसमें हम आपको सर्टेनली हेल्प कर सकते हैं. Can you provide the list of journals and publications? So we'll do that in a जो आपका WhatsApp ग्रुप बनाया है उसमें कर सकते हैं. प्लस ऑल द स्टूडेंट्स जो हम लोग के ऐप पे जुड़े हुए हैं, तो उसमें मैं एक सेक्शन आपका बना दूंगा प्रोफाइल बिल्डिंग से रिलेटेड, एक बैच बना दूंगा. या आपका ऑलरेडी जो बैच है उसमें प्रोफाइल बिल्डिंग से रिलेटेड एक फोल्डर में हम लोग रिसर्च पब्लिकेशन से जुड़ा हुआ जितना भी मटेरियल है हम डाल देंगे, राइट. सो डोंट वरी, वॉट एवर क्वेश्चन या जो भी आपके हम लोग आपने पूछे उनसे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंटेशन है हम लोग डाल देंगे. एंड इनफैक्ट व्हाट आई एम प्लानिंग टू डू इज, ये जो पूरा जो हमने आज सेशन लिया इसकी रिकॉर्डिंग है, इसको हम थोड़ा क्यूरेट करके इसको यूट्यूब पे डाल के आपको अवेलेबल करा देंगे, ठीक है. So with that, I'll thank all of you who come and listen to this webinar. And I would also like to thank Arun sir, जिन्होंने टाइम निकाला और अपना एक्सपीरियंस हमारे बच्चों के साथ शेयर किया यहाँ पे. Thanks a lot, Arun sir. Thank you, sir. Thank you, and thank you guys for listening and just sharing your time with us. Thank you so much. चलिए सर, आगे यही उम्मीद करता हूँ इससे अपना कुछ प्रोडक्टिव निकलेगा एंड we'll see a lot of good quality research paper from Skill Master. Yeah, that will be great, sir. Actually, just because of these students, मेरे पुराने दिन वापस आ गए, sir. चलिए, good. ठीक है, Thank you, guys. let's conclude this now. ठीक है. Okay, thank you, sir. चलिए, thank you.